اشمل کو خاموشی سے اپنی بات سنتے دیکھ کر حسیب نے کوٹ کی جیب سے طلاق کے پیپرز نکال کر اشمل کی طرف بڑھائے تھے، جنہیں اشمل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے خاموشی سے پکڑا تھا۔ ملک حسیب، بہت اچھی پلاننگ کی، بہت ریسرچ کی ہوگی تم نے ہم دونوں پر، لیکن افسوس کہ تم مسز احان نظامیر کے سامنے بیٹھے ہو۔ میں اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کرتی ہوں اور تمہاری غلط فہمی دور کر دوں تاکہ اگلی بار ایسی کوئی گھٹیا حرکت کرنے کا نہ سوچو تم۔ میں احان سے الگ ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ کسی نے تمہیں ہمارے بارے میں یہ غلط انفارمیشن دے کر بیوقوف بنایا ہے۔ شکر مناؤ کہ احان کے متعلق تمہاری اتنی بکواس آرام سے سن لی ہے میں نے، ورنہ ابھی کارڈز کو بلا کر تمہاری عقل ٹھکانے لگوا دوں۔ اشمل اس کی آخری بات پر غصے میں آتی بولی۔ اسے اس شخص کی نظریں بہت ہی بری لگ رہی تھیں۔ اپنے اور احان کے ریلیشن کے بارے میں اس کی بکواس سن کر اشمل نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ پر پیپرز کے ٹکڑوں کو مارا تھا۔ اس دن مہندی کی رات میں ملک حسیب کی آمد پر اسے حاجہ بیگم اور باقی عورتوں کی باتیں سن کر اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کتنا گھٹیا شخص ہے۔ احان کے ساتھ اس کا رویہ جیسا بھی تھا، لیکن احان کے دشمن سے اس طرح اپنی پرسنل لائف کا سن کر اسے بہت برا لگا تھا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ ملک حسیب طیش میں آتے اپنی جگہ سے اٹھا تھا جب احان اس کے اشمل پر چلانے سے مزید خود کو وہاں نہ روک پاتے غصے سے آگے بڑھا تھا۔ انجام تو اب تمہارا اچھا نہیں ہوگا، بزدل انسان، ہمت ہے تو مرد بن کر سامنے سے لڑو۔ احان ایک زوردار مکہ ملک حسیب کے منہ پر دے مارا تھا جب اس اچانک ہونے والے حملے پر نہ سنبھلتے وہ پیچھے جا گرا تھا۔ احان، یہ کیا کر رہے ہو آپ، چھوڑیں اسے۔ اشمل احان کو اتنے غصے میں دیکھ کر گھبراتے ہوئے آگے بڑھی، لیکن احان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا۔ احان کا اشمل پر دھیان ہونے کی وجہ سے ملک حسیب نے جلدی سے اٹھتے اس کے منہ پر ایک پنچ دے مارا تھا، جس پر احان مزید غصے میں آتے ملک حسیب پر جھپٹا تھا اور بلیک بیلٹ ہونے کی وجہ سے کچھ ہی دیر بعد ملک حسیب کا حشر بگاڑ دیا تھا۔ احان کو اتنے غصے میں بپھرا دیکھ کر اشمل کو اس سے شدید خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ پائی تھی جب کسی کی اطلاع پر ہاسپٹل کے گارڈز جلدی سے وہاں بھاگتے آئے اور بہت مشکلوں سے احان کو اس سے دور کیا تھا۔ جب احان ایک طرف سہم کر کھڑی اشمل کا ہاتھ پکڑے گاڑی میں آ بیٹھا اور تیز رفتار سے گاڑی چلاتے گھر پہنچا تھا۔ وہ گاڑی سے نکل کر بنا اشمل سے کوئی بات کیے سیدھے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اشمل نے ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھے ملازمہ کو جوس لانے کا کہا اور ساتھ ہی احان کی طرف بھی بھجوانے کو کہا تاکہ اس کا دماغ کچھ ٹھنڈا ہو۔ بیگم صاحبہ سر بہت غصے میں ہیں، میں اوپر گئی تو ان کا سختی سے آرڈر ہے کہ جب وہ غصے میں آئیں تو کوئی ان کے پاس نہ آئے۔ ملازمہ کی بات پر اشمل نے اسے جوس وہیں رکھنے کا کہہ کر جانے کا اشارہ کیا اور گہرا سانس ہوا میں خارج کر کے اس نے خود کو نارمل کیا تھا۔ اس نے بہت لوگوں کو غصے میں دیکھا تھا، لیکن اتنا شدید غصہ کرتے کبھی کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ اسے اب سمجھ آئی تھی کہ احان کے ارد گرد رہنے والے لوگ اسے غصے سے اتنا خائف کیوں ہیں۔ احان جتنا غصے میں تھا، اشمل نے ایک بار تو سوچا کہ وہیں بیٹھی رہے، لیکن پتہ نہیں کیوں دل آج اس شخص کی کچھ زیادہ ہی سائڈ لے رہا تھا، کیونکہ اشمل نے احان کے ہاتھ پر بھی خون دیکھا تھا۔ ضرور اس مار پیٹ میں اسے بھی چوٹ لگی تھی، جس کا سوچتے اشمل اس کی غصے میں ہونے کے باوجود دل کے مجبور کرنے پر اوپر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اشمل ہولے سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی۔ احان ہاتھ میں سگریٹ لیے ریوالونگ چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اشمل نے اس کے پاس رکھے ٹیبل پر جوس کا گلاس رکھتے ایک نظر ایش ٹرے میں پڑے سگریٹس کی طرف دیکھا تھا۔ احان اشمل کی موجودگی نوٹ کرنے کے باوجود بھی ویسے ہی بیٹھا رہا۔ اشمل کی نظر احان کے ہونٹ سے نکلے خون اور ہاتھ پر پڑی تھی جو ملک حسیب کو پیٹنے کی وجہ سے زخمی ہوا تھا۔ وہ الماری سے میڈیکل کٹ نکال کر اس کی طرف بڑھی اور احان کا ہاتھ پکڑ کے سگریٹ چھیننے کے انداز میں لے کر ایش ٹرے میں پھینکی تھی، جس پر احان نے آنکھیں کھول کر سخت نظروں سے اسے گھورا تھا، لیکن اشمل اس کی نظروں کی پرواہ کیے بغیر اس کے ہاتھ پر لگے خون کو روئی سے صاف کرنے لگی۔ اشمل، میں اس وقت بہت غصے میں ہوں، تم جاؤ یہاں سے۔ احان نے اس کی گرفت سے بازو نکالتے ایک اور سگریٹ سلگایا تھا۔ ملک حسیب کو اتنا مارنے کے بعد بھی تمہیں سکون نہیں مل رہا؟ کیونکہ جس طرح اس نے اشمل پر نظر ڈالی تھی، احان کا دل کر رہا تھا کہ اس شخص کو وہیں ختم کر دے۔ احان نظامیر، میرے سامنے یہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی سے بیٹھے رہو اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اشمل نے اس کا غصہ کم پڑتے دیکھا، اسے گھورتے ہوئے بولی، تم اس کی بات سننے کو کیوں گئی تھی؟ احان سرد انداز میں اس کی طرف دیکھتے بولا، لیکن اشمل اس کی بات کا جواب دیے بغیر اپنے کام میں مصروف رہی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں اشمل۔ احان نے پاس کھڑی اشمل کو بازو سے پکڑ کے اپنے اوپر گرایا تھا۔ جواب میں اشمل نے بھی اس کی حرکت پر غصے سے اسے گھورا تھا، لیکن بولی پھر بھی کچھ نہیں، اور ہاتھ بڑھا کر باکس میں سے روئی نکال کر اس پر ڈیٹول ڈالتے احان کے
خون کے پاس موجود زخم پر لگا خون صاف کرنے لگی تھی۔ اشمل میں پہلے ہی بہت غصے میں ہوں اور تم اس طرح خاموش رہ کر مجھے مزید غصہ دلا رہی ہو۔ آہان اپنے اوپر مزے سے بیٹھی جھک کر زخم صاف کرتی اشمل کو گھور کر بولا۔ اچھا، مطلب ابھی آہان نظامی کو مزید غصہ آنا باقی ہے۔ ویری گڈ۔ میں وہاں ایک ڈاکٹر ہوں، ہزاروں لوگوں سے ان کی بیماری کے سلسلے میں ملنا ہوتا ہے، بات کرنی ہوتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کون ہے اور کس مقصد سے ملنا چاہتا ہے۔ اب وہ اس غریب کی اتنی بری حالت تو کر دی ہے، میرے خیال میں اب تمہارا غصہ کم ہو جانا چاہیے۔ اشمل زخم صاف کر چکی تھی جب اس کی بات کا جواب دیتے پیچھے ہٹی، لیکن آہان نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا۔ اشمل کی بات پر آہان کو اس ملک حسیب کر دیا اشمل کا جواب یاد آیا تھا۔ غصہ تو اس کو اشمل کے پاس آنے اور اتنے کیئرنگ انداز سے ویسے ہی دور ہو چکا تھا، لیکن اب اتنے تنے ہوئے اعصاب کو پرسکون کرنے کے لیے اسے اشمل کا قریب رہنا اچھا لگ رہا تھا۔ تم نے اس کو کیا کہا اس کی گھٹیا باتوں کے جواب میں؟ آہان کی بات پر اشمل نے اس کی طرف دیکھا۔ اشمل خود بھی ابھی تک نہیں سمجھ پائی تھی ملک حسیب کے منہ سے آہان کے بارے میں غلط الفاظ سن کر اسے اتنا غصہ کیوں آیا تھا۔ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ بھی تو کچھ ٹائم پہلے یہی چاہتی تھی نا، تو پھر اتنا برا کیوں لگا تھا؟ اشمل کو خود بھی اپنی کیفیت کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب اس کا سوال سنا ہے تو میرا جواب بھی سنا ہوگا، اور زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف اس کی بکواس بند کرنے کے لیے بولا تھا۔ اشمل نے اس کی خوش فہمی دور کرتے اٹھنا چاہا، لیکن آہان نے اپنے گرد موجود بازوؤں کی وجہ سے اسے ایسا نہیں کر پائی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے سکون چاہیے مجھے پلیز، اس کی مزاحمت پر آہان نے اسے دور ہونے سے روکتے ہوئے کہا تھا۔ پہلے کبھی بھی اس کا غصہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتا تھا۔ وہ پوری رات سگریٹ اور شراب کے ساتھ گزار دیتا مگر سکون بھی نہیں ملتا، لیکن آج پہلی دفعہ حیرت انگیز طور پہ اتنے شدید غصے کے باوجود اشمل کے قریب آنے پر اسے سکون مل رہا تھا۔ اس لڑکی کی تھوڑی سی کیئر اسے اتنی اچھی لگی تھی تو اس کی محبت اس کیسی ہوگی؟ اشمل کی اس کی بات سننے چاہنے کے باوجود بھی وہ دوبارہ مزاحمت نہ کر پائی تھی۔ بیگم صاحبہ نیچے کوئی لڑکی آئی ہے اور آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ ملازمہ کمرے کا دروازہ نوک کر کے اس کے پاس آتے بولی۔ اوکے، تم انہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ ملازمہ سہلاتی وہاں سے نکل گئی۔ مجھ سے کون ملنے آ سکتا ہے؟ اشمل حیرانی سے سوچتی نیچے کی طرف بڑھی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے اس کی نظر صوفے پر بیٹھی لڑکی پر پڑی تھی، جو کوئی اور نہیں بلکہ مشہور سپر ماڈل صوفیہ تھی، جو بے حد اسٹائلش سلیولیس شرٹ میں ٹائٹ پینٹ اور بنا دوپٹے کے لیے اپنے بے پناہ حسن کے ساتھ مغرور انداز میں براجمان تھی۔ اشمل اسے وہاں دیکھ کر حیرت سے زدہ ہوگی، آگے بڑھتے اسے سلام دیتے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ اشمل پر نظر پڑتے بنا سلام کا جواب دیتے اس نے اپنی جگہ پر ہی بیٹھے سر سے پاؤں تک اشمل کا گہرے نظروں سے جائزہ لیا۔ تو تم ہو آہان نظامیر کی بیوی؟ مجھے تو ایسا کچھ خاص تعریف کے قابل نہیں نظر آ رہا جو آہان نظامیر جیسے شخص کو تم نے اپنا دیوانہ بنا لیا۔ صوفیہ اس کے مقابل آتی حسد بھری نظروں سے اسے دیکھ کر بولی۔ ایکسکیوز می مس، یہ کیا طریقہ ہے کسی گھر میں جا کر بہیو کرنے کا؟ اشمل اس کے انداز کو سمجھنے کی کوشش کرتے تحمل سے بولی۔ ہاں، یہ تمہارا گھر نہیں آہان کا گھر ہے، اور تم سے پہلے میں اس گھر میں رہ چکی ہوں۔ آہان کے اتنے قریب کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تم سے بھی پہلے آہان پر میرا حق ہے۔ میں یہاں تمہیں صرف اتنا سمجھانے آئی ہوں کہ آہان اور میں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان کسی بات پر لڑائی ہوئی جس کی وجہ سے آہان نے مجھ سے ناراض ہو کر مجھے سزا دینے کے لیے تم سے نکاح کیا، اور اس دن آہان کا ایکسیڈنٹ ہماری لڑائی کے بعد ہوا تھا۔ لیکن اب میں واپس آ چکی ہوں اور بہت جلد آہان اور میرے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے تم اپنا بندوبست کر لو۔ صوفیہ اسے آہان سے بدزن کرنے کے لیے اپنے من گھڑت کہانی سناتی وہاں سے نکل گئی، کیونکہ اشمل کا چہرہ دیکھ کر اسے اپنا منصوبہ کامیاب ہوتا محسوس ہوا تھا۔ ابھی تو اس نے آہان کے بارے میں سوچنا شروع کیا تھا، دل اس کی پچھلی غلطیوں کو معاف کرنے پر آمادہ ہوا تھا۔ آہان کے بھی تو ہر عمل سے اس کے لیے محبت جھلکتی تھی۔ اشمل اس کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ایک لڑکی اپنے بارے میں اتنی بڑی بات کیسے کر سکتی تھی؟ آہان ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ جب اس کی نظر ہاتھ پر چہرہ ٹکا تو بیٹھی اشمل پر پڑی تھی، جو نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی کہ آہان کے اندر آنے پر بھی متوجہ نہ ہوئی۔ آہان اس کے انداز پر غور کرتے ہوئے اس کے قریب آ کر بیٹھا، جس پر اشمل نے چونک کر اجنبی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا، کوئی پرابلم ہے؟ آہان کو اس کے انداز سے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا، لیکن اشمل اس کی بات کا جواب دیے بغیر وہاں بیٹھی تھی۔ آہان اپنے اس طرح سے اگنور کیے جانے پر کمرے میں آ کر اس کا بازو پکڑ کے اپنی طرف رخ موڑتے ہوئے بولا۔ مسئلہ میرے ساتھ نہیں، آہان نظامیر تمہارے ساتھ ہے۔ اشمل نے اسے اپنا بازو چھڑا کر بولی۔ آہان کے لیے اشمل کا یہ انداز سمجھ سے بالا تھا۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تم میرے سامنے اتنا اچھے بننے کا ناٹک کیوں کر رہے ہو۔ یہ شراب چھوڑنے اور محبت کا جو
झूठा ड्रामा करने की क्या जरूरत है? ये इतना अच्छा बनकर तुम्हारे वो तमाम गुनाह नहीं छुप जाएंगे जो तुमने न जाने कितनी नामहरम लड़कियों के साथ ताल्लुकात कायम करके किए हैं। आज सोफिया आई है, कल कोई और आएगा। मुझे रहना ही नहीं है तुम जैसे शख्स के साथ। इश्माइल ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखकर चलाकर बोली। आहा ने दुख से उसकी बदगुमानी की इंतहा पर देखा था। इस लड़की को इसने खुद से भर के चाहा और वो इसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देने के बजाय उसे ड्रामा कह रही थी। खामोश क्यों हो? आज तुम्हारी सच्चाई सामने आने के बाद अल्फाज खत्म हो गए हैं। इश्माइल के तंज पर आहान ने सुर्ख आंखों से उसकी तरफ देखा और उसे दोनों बालों से जकड़ते अपने बेहद करीब लाया। इश्माइल, तुम्हें पहले भी मैंने कहा था कि अपने बारे में मैं तुम्हें कभी किसी को सफाई नहीं दी और ना तुम्हें दूंगा। तुम मुझ पर जितने इल्जाम लगाती हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी मोहब्बत को झूठा कहकर तुमने अच्छा नहीं किया। हाँ, मानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत सी लड़कियों से दोस्ती की है, लेकिन कभी अपनी हद क्रॉस नहीं की। मैं अपनी लिमिट से अच्छे से वाकिफ हूँ। सोफिया भी खुद मेरी तरफ बढ़ी थी, लेकिन मेरा खुदा गवाह है कि कभी उसको अपने करीब नहीं आने दिया। उसके मुताबिक वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और हमेशा के लिए मेरे होना चाहती थी, लेकिन मैं जानता था उसे मुझसे नहीं, मेरी ज़ाहिरी शख्सियत और मेरी शान शौकत से प्यार है। मैं न कभी मोहब्बत पर यकीन रखता था और न ही इस जज्बे के जेर असर होना चाहता था। मैंने उसे साफ लफ्जों में इनकार कर दिया। हजारों लोगों से सुहराने जाने के बावजूद उसे मेरा रिजेक्ट करना बर्दाश्त नहीं हो पाया और मुझसे बदला लेने के लिए हमारे एक पार्टी में ली गई पहले की तस्वीर को गलत रंग देकर मीडिया के सामने लाना चाहती थी। उसका मकसद मुझसे सब के सामने बदनाम करना, लेकिन मेरी खुशकिस्मती जिस चैनल में उसने वो पिक्चर दी वहां का हेड मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। उसने सारी बात मुझे बता दी, जिस पर मैंने सोफिया को उसकी हरकत पर बेइज्जत करके उसके साथ मुकम्मल बाइकआउट कर लिया था। वो आज तक मुझसे अपनी गलती पर माफी मांगती फिर रही है और ये जानकर कि मेरी शादी हो चुकी है उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, जिस वजह से तुम्हें मुझसे पसंद करने यहाँ पहुंच गई और शायद इसका काम में उससे ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आई। आहान उसकी आंखों में देखता अफसोस से बोला। इश्माइल, तुम सोच भी नहीं सकती कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत और शिद्दत है और तुम्हारी हर बात सर आंखों पर, लेकिन मेरी मोहब्बत पर इल्जाम लगाकर तुमने अच्छा नहीं किया। आहान उसको एक झटके से खुद से दूर करता कमरे से नहीं घर ही से निकल गया था। ईश्वर खामोशी से बेड पर आ बैठी। आहान की बात सुनकर उसने अपनी कही गई बातों पर शिद्दत से पछतावा हुआ था। उसने आहान की आंखों में सच्चाई देखी थी। आहान का इकरार सुनते उसके दिल को एक अनजानी सी खुशी महसूस हो रही थी। ईश्वर, इतनी बकवास करने की क्या जरूरत थी? आराम से भी तो पूछ सकती थी। इसको इस तरह से गुस्से से जाने पर ईश्वर को खुद ही दिल में पूछती उसका इंतजार करने लगी थी। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। आरफीन सफिया बेगम के कमरे में दाखिल होता बोला था। आ जाओ बेटा, क्या बात है? सफिया बेगम आरफीन की तरफ देखते बोली। मुझे सोबिया से शादी नहीं करनी है, आप प्लीज इस बात को खत्म कर दें। सफिया बेगम ने उसकी बात को सुनते गुस्से से बोला था। जी, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, आपको मेरी बात समझनी होगी। आरफी ने धीमे लहजे में बोला। ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी पुप्पो को जबान दे चुकी हूँ, तो आप इनकार कर दें, क्योंकि मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला आप मुझसे पूछे बगैर नहीं कर सकती। आरफीन, मैं अच्छे से समझ रही हूँ तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। उस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। सफिया बेगम हिना की बात करते नखुबत से बोली। तो आप भी मेरी बात याद रखें, अगर मेरी शादी हिना से न हुई तो किसी से भी नहीं होगी और न ही आप मुझसे इसके लिए मजबूर कर पाएंगी। आफरीन सफिया बेगम को अपना फैसला सुनाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था। आहा ने 2 दिन से इश्माइल से कोई बात नहीं की। इश्माइल ने उसे अपने रवैये की माफी मांगनी चाहिए, लेकिन आहा के सर्द अंदाज में कुछ वो ना बोल पाई थी। कुछ दिनों में सिद्रा की मंगनी थी और वो इश्माइल को हॉस्पिटल से ऑफ होते अपने साथ शॉपिंग पर ले आई थी। इश्माइल का बिल्कुल मूड नहीं था, लेकिन सिद्रा के असरार पर खामोशी से उसके साथ आ गई थी। हुमा ने भी कुछ शॉपिंग करनी थी। सिद्रा कितने ही ड्रेसेस देख चुकी थी, लेकिन उसको अभी कोई पसंद नहीं आ रहा था। जब अचानक एक लाइट पर्पल कलर का शरारा सूट पर नजर पड़ते ही वो इस तरफ बढ़ी थी। वाओ, आप ही बहुत खूबसूरत है, आप पर ये कलर सूट बहुत अच्छा लगेगा। इश्माइल के साथ साथ हुमा को भी वो सूट सिद्रा के लिए अच्छा लगा था। थैंक गॉड, तुम लोगों की शॉपिंग कंप्लीट हुई। चलो अब चलकर कुछ खा लें, मुझे बहुत भूख लगी है। इश्माइल ने उनके साथ सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ी थी। ओह नो, मेरा ड्रेस वाला शॉपर तो नीचे शॉप पे ही रह गया है। कैफे में दाखिल होती हुमा को कुछ याद आया था। तुम्हारा ध्यान कहाँ होते हैं हुमा? इश्माइल ने उतारते हुए लहजे में बोला। अच्छा कोई बात नहीं इश्माइल, तुम कुछ ऑर्डर करो, हम लोग इतनी देर में जल्दी से जाकर लेकर आते हैं। सिद्रा इश्माइल से कहती हुमा के साथ नीचे की तरफ भटक गई थी। इश्माइल कैफे में बैठी उन लोगों का इंतजार करी थी, जिन्हें ये 15 मिनट हो चुके थे जब उसे वहां एक अजीब सी स्मेल फील हुई और थोड़ी देर बाद लोगों के शोर के साथ
हर तरफ धुआं फैलता दिखाई दिया। इश्मल अभी चेयर से उठती फिक्रमंदी से आगे बढ़ी थी। सिद्रा पे ये क्या हो रहा है? सब लोग भाग क्यों रहे हैं? हुमा ने सिद्रा के साथ शॉप से निकलते हैरानी से लोगों के भागने की वजह पूछी। जब सेकंड फ्लोर पर नजर पड़ी तो दोनों अपनी जगह साकित हो गई। सेकंड फ्लोर पर आग फैल चुकी थी। हर तरफ धुआं ही धुआं था। सिद्रा होले से बड़बड़ाई थी। इर्द गिर्द से लोग अंधाधुंध भागते अपनी जान बचाते बाहर की तरफ जा रहे थे। जब सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें भी बाहर की तरफ जाने का इशारा किया, उन्होंने बेबसी से सेकंड फ्लोर की तरफ देखा जहां आग बुरी तरह फैल चुकी थी। दिन में इश्मल के नीचे आ जाने की दुआ करते वो लोग बाहर की तरफ खड़ी थी। हाँ, थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से निकला था। उसे आज एक अजीब सी बेचैनी फील हो रही थी। जब सेल पर हुमा की कॉल देखकर उसने रिसीव किया तो हुमा की बात सुनते ही उसे अपनी सांस रुकती महसूस हुई थी। उसकी मजीद कोई बात सुने बगैर अहान अपनी गाड़ी शॉपिंग मॉल की तरफ मोड़ी थी। गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते 20 मिनट का सफर उसने 5 मिनट में तय किया था। वहां लोगों का बहुत रश था। सर, आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर बहुत खतरा है, आग हर तरफ फैल चुकी है। उसे अंदर की तरफ जाता देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पकड़ के रोकना चाहा। अहान एक पल के अंदर के लिए इश्मल तक पहुंचना चाहता था। इश्मल की जान खतरे में होने का सोचकर वो पागल हो रहा था। अंदर मेरी बीवी है, डैम इट। अहान उन्हें पकड़कर दूर फेंकते अंदर की तरफ बढ़ा और ऊपर की निस्बत नीचे वाले फ्लोर में आग कम फैली थी। अभी अहान बहुत मुश्किल से आग के बीच से रास्ता बना के आगे बढ़ा के सेकंड फ्लोर पर जाने वाली लिफ्ट मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में आ चुकी थी। अहान जल्दी से दूसरी तरफ से होती सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, लेकिन सेकंड फ्लोर पर पहुंचकर उसके कदम थम से गए थे। हर चीज आग की लपेट में आ चुकी थी। हर तरफ धुआं और आग के शोले थे। अहान को रास्ते का तयन करना बहुत दुश्वार हो रहा था, लेकिन वो किसी सूरत में हिम्मत नहीं हारना चाहता था। ईश्वर को लिए बगैर जाने का वो सोच भी नहीं सकता था। वो एरिया बड़ा होने की वजह से अहान ईश्वर को इतनी आसानी और जल्दी से ढूंढ दे काफी मुश्किल था। जब कुछ सोचते हुए उसने मोबाइल निकाला और ईश्वर का नंबर डायल किया। बेल जारी थी, लेकिन ईश्वर ने कॉल रिसीव नहीं की, जिस पर अहान की परेशानी में मजीद इजाफा हुआ। दूसरे के बाद तीसरी कॉल पर फोन अटेंड कर लिया गया। जब स्पीकर पर उभरती इश्मल की घबराई आवाज सुनकर अहान के बेकरार दिल को कुछ करार आया और उसने पहुंचने में देर नहीं की थी कि उसकी इश्मल ठीक है, अब उसे कुछ नहीं होने देगा। लोगों को भागता देखकर आग सुनकर इश्मल भी अभी ग्राउंड फ्लोर की तरफ बढ़ी थी। जब अफरा तफरी के आलम में कैफे के छोटे से दरवाजे से लोगों का मुश्किल से रास्ता बनाते निकल रहे थे। इश्मल आगे बढ़ी। जब पास से गुजरते शख्स का धक्का लगने से उसका सर बुरी तरह सामने वाली दीवार से टकराया और वो अपने हवासों पर काबू ना रख पाई। जब उसको होश आया तो उसके चारों तरफ आग फैल चुकी थी। पूरा कैफे खाली था। आहिस्ता आहिस्ता आग हर चीज को अपनी लपेट में ले रही थी। अब वो किसी किस्म की मदद की उम्मीद नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस भड़कती आग में कोई पागल शख्स ही खुद कूद सकता है, और वो ये बात नहीं जानती थी कि वाकई उसकी मोहब्बत में पागल शख्स अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी आग में कूद चुका है। इश्मल खौफजदा अंदाज में कोने में सिमट के बैठी धुएं की सिमट से उसका सर बुरी तरह चकरा रहा था। जब उसकी आंसू भरी आंखों के सामने पापा, मामा, उमा और आहत के साथ साथ उसका दुश्मन जां का चेहरा भी लहराया था, जो अपना हक जमाते मोहब्बत और दोस्त भरे अंदाज से उसके दिल में पूरी तरह के साथ बेरजमान हो चुका था। आहान रजामी। इश्मल ने मोहब्बत से उसका नाम पुकारा था। जब अचानक कुछ फासले पर गिरे मोबाइल पर नजर पड़ी, इश्मल ने आगे होकर उसे फोन उठाया तो मोबाइल पर जगमगाता नंबर आहान का था। इश्मल ने जल्दी से कॉल अटेंड की। इश्मल, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे करीब ही हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम जल्दी से बताओ कि तुम सेकंड फ्लोर पर किस साइड पर हो। उसकी घबराई आवाज सुनकर आहान ने उसे तसल्ली दी। नहीं आहान, यहाँ आग बहुत फैल चुकी है, तुम आगे मत आना। इश्मल उसकी बात सुनते चलाई थी। इश्मल, ये जिद करने का टाइम नहीं, जो पूछा है उसका जवाब दो। आहान ने उसे डबल आवाज में चलाया था। मैं कैफे के अंदर मौजूद हूँ, ये लिफ्ट से आगे दाईं तरफ 2-3 शॉप छोड़कर है। इश्मल की बात पर आहान कैफे की लोकेशन काफी हद तक समझ चुका था, क्योंकि वो नीचे से लिफ्ट देख चुका था। वो किस साइड पर है। इश्मल, फोन बंद मत करना, ओके। आहान उसे हिदायत देता आगे बढ़ा था। बहुत मुश्किल से रास्ता बनाते वो कैफे के बिल्कुल सामने पहुंच चुका। जब उसकी नजर शीशे के पार मौजूद इश्मल पर पड़ी। इश्मल भी उसे देख रही थी। कैफे में दाखिल होने वाला रास्ता पूरी तरह आग की लपेट में था। आहान ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। जब उसकी नजर एक तरफ पड़े कालीन पे पड़ी थी, आहान ने कालीन उठाकर खोलते उसे खुद को कवर किया। इश्मल उसे मुसलसल सर हिलाकर अंदर आने से मना कर रही थी। आहान एक ही जिसमें आग में कूदा और इश्मल से उसकी तरह आग में छलांग लगाता देखकर जोर से चिल्लाते बेहोश होकर नीचे गिरी थी।
अहान कैफे के अंदर पहुंचा तो कालीन में कवर होने की वजह से महफूज रहा है, लेकिन कालीन को एक कोने से आग लग चुकी थी। अहान ने पाँव मार के पहले आग को बुझाया और फिर बेताबी से नीचे गिरी इश्माइल की तरफ बढ़ा। उसका चेहरा थपथपाते हुए उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन इश्माइल को होश न आता देखकर अहान ने उसे कंधों पर डालकर दोनों के गिर्द अच्छे से कालीन उड़ा और एहतियात से गुजरते वहां से निकल आया था। अहान परेशान नजरों से बेड पर आंखें मूंदे लेटे इश्माइल को देख रहा था, जिसको अभी तक होश नहीं आया था। अभी थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर्स उसका चेकअप करके गए थे। डॉक्टर के मुताबिक वो डर और धुएं की वजह से बेहोश थी और थोड़ी देर में ही होश आ जाना था। अहान इश्माइल के पास बेड पर आ बैठा और गोले से उसके हाथ को थाम कर लबों से लगाया था। अहान कुछ नहीं होना चाहिए। इश्माइल बंद आंखों से चलाती एकदम डर के उठी थी जब आंसू भरी आंखों के साथ अपने सामने बैठे अहान को देखा और आगे पर उसका चेहरा दोनों हाथों से छूते उसके अपने सामने होने का यकीन करना चाहा। अहान जानता था कि वो इस वक्त डर के जेर असर अपने हवासों में नहीं है, इसलिए उसे अपने साथ लगाया। अहान ने कुछ घंटे जिस असलियत में गुजारे थे वो मजीद इनके बारे में सोचना नहीं चाहता था। उसे आज शिद्दत से एहसास हुआ कि ये लड़की उसकी सांसों से भी ज्यादा जरूरी है। ईश्वर बिल्कुल उसके सीने के साथ चिमटी हुई थी। उसके गिर्द बांधे उसके सीने में चेहरा छुपाए वो इसकी किसी सूरत जुदा होने को तैयार नहीं थी और अहान भी कब ऐसा चाहता था। ईश्वर पूरी रात ऐसे ही उसके सीने पर सर रख के सोती रही। सुबह बहुत लेट उसकी आंख खुली और जब पूरे हवासों में लौटते अपनी पोजीशन समझती शर्म से सुर्ख हुई तो वो बिल्कुल अहान के ऊपर सो रही थी, तो उसका सर अहान के चौड़े सीने पर धरा उसके दाएं कंधे की तरफ लटका हुआ था और बाएं बाजू साइड से अहान की कमर पे लिपटा हुआ था। अगर अहान की आंख खुल गई तो इसकी खैर नहीं। वह अभी शीशोपंच में मुब्तला थी, लेकिन मजीद इस पोजीशन में रहने का उसे शर्म से बेहोश हो जाना था, इसलिए आराम से उसका बाजू अपने ऊपर से हटाना चाहा। अहान ने उसकी हरकत पर टोकते करवट बदलते इश्माइल को अपने मजीद करीब किया था। इश्माइल ने इसके अमल पर शर्म से धरधरी हो गई थी। उसके हसार से निकलना चाहा था, लेकिन अहान अभी छोड़ने के मूड में नहीं था। उसे अहान को समझने में गलती कर दी थी। वो वाकई एक खूबसूरत दिल का मालिक और उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। जिस तरह वो कल उसकी खातिर आग में कूदा था, याद आते ही इश्माइल को उसके साथ अपने पिछले रवैये पर जी भर के पछतावा हुआ था और साथ ही अपने दिल में उसके लिए परवान चढ़ते जज्बों का भी शिद्दत से एहसास हुआ था, क्योंकि वो खुद भी उसे खतरे में देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। जाना मतलब तुम पूरा इरादा कर चुकी हो मुझे सोने नहीं देना। अहान उसकी हल्के हल्के झटकों से आंख खुल चुकी थी। तुम सो जाओ, लेकिन मुझे तो जाने दो, 2 बज रहे हैं। इश्माइल ने उसके तेवर से घबरा कर बोली। तुम्हारे बगैर नींद कहाँ आनी है। अहान उसके चेहरे पर बिखरे बालों को कान के पीछे अड़ाते हुए बोला और उसके सुर्ख चेहरे पर झुकने ही वाला था जब दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर दोनों ने उस तरफ मुतवज्जो हुए थे। सर नीचे आरफीन साहब आए हैं। अहान के पूछने पर मुलाजमा बाहर से जवाब देते बैठ गई थी। यार इसको भी अभी आना था। अहान बदमजा सा हुआ क्योंकि इश्माइल उसके बाहों से निकलने में कामयाब हो चुकी थी। डियर वाइफ, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। इस फरार का बदला मैं रात को तुमसे सूद समझ लूंगा। अहान की प्यार भरी धमकी सुनते इश्माइल की धड़कते मुंतशिर हुई थी। इस शख्स की थोड़ी सी बर्दाश्त नहीं होती और उसकी शिद्दतों का सोचकर इश्माइल के लिए अभी ही पसीने छूट रहे थे। अहान फ्रेश होकर नीचे जा चुका था जब इश्माइल ने मुलाजमा को नाश्ते की हदायत दी थी। ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। आरफी ने उसे अंदर देखते ही सलाम किया था और अपनी जगह से खड़ा हुआ था। अहान, मैं यहाँ तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ जो तुम्हारी मदद के बगैर मुमकिन नहीं। पहले आराम से मेरी बात सुनना और उसके बाद कोई फैसला करना। आरफीन के इतने संजीदा अंदाज पर अहान मुकम्मल तौर से इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ था। जिस तरह आरफीन यहाँ खास तौर पर से बात करने आया था, अहान को मामला काफी सीरियस लगा था। अहान के इशारे पर आरफीन धीमे लहजे में उसे अपनी हिना के लिए पसंदीदगी से लेकर हाजरा और सफिया बेगम के इस रिश्ते से इनकार और हिना के साथ रखा हुआ रवैया सब बताता चला गया। उसकी बात सुनते ही अहान को अपने घर वालों पर बेइंतहा गुस्सा आया था। आरफीन, तुमने ये बताकर मुझे बहुत अच्छा किया। तुम्हें इतनी परेशानी, अगर तुम मुझे पहले बता देते तो तुम्हें इतनी परेशानी फेस ना करनी पड़ती। लेकिन अब तुम फिक्र ना करो, अगर हिना की भी इस रिश्ते में रजामंदी शामिल हुई तो मैं तुम लोगों का साथ जरूर दूंगा। अहान की बात सुनकर आरफीन बेहद खुश हुआ। वो इतना तो जानता था कि अहान अब किसी भी सूरत ये मुमकिन करके ही रहेगा। उसने यहाँ का आने का फैसला गलत नहीं किया था। इश्माइल को आरफीन हिना जैसी मासूम और बेज़र सी लड़की के लिए बहुत अच्छा लगा था
اور आहान का इस बात पर मुस्बत रिएक्शन देखकर इश्मल के दिल में उसका मुकाम मजीद बढ़ गया था, जिसने इस तरह आरफीन से बात सुनकर उसे अना का मसला बनाने के बजाय अपनी बहन की खुशी को तरजीह दी थी। आरफीन अब निकलना चाहता था, लेकिन उन दोनों के भरपूर इसरार पर नाश्ते के लिए रुक गया। उसके जाने के बाद आहान ने हफ्सा को कॉल मिलाई और उसने हफ्सा से जो बात पूछी उसने सुनते ही हफ्सा अपनी जगह साकित हुई थी। हफ्सा, मैंने कुछ पूछा है तुमसे। आहान उसकी खामोशी से तेज लहजे में बोला। भाई, वो हफ्सा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। उसके लहजे की लड़खड़ाहट पर आहान ने उसकी बात काटते हुए बोला। जी भाई, ये सब सच है। मैं नहीं जानती आपको कैसे पता चला, लेकिन प्लीज भाई, इस सब में हिना की कोई गलती नहीं है। आहान के गुस्से की वजह से हफ्सा डरते हुए बोली। जब आहान ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। उसे कम से कम हफ्सा से इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो भी इससे इतनी बड़ी बात छुपाएगी। उसका अच्छा भला खुशगवार मूड बुरी तरह गारत हो चुका था। आज उसकी थोड़ी देर तक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए अभी ऑफिस के लिए निकलना था। वो चेंज करने की घर से बेडरूम की तरफ बढ़ गया था। मुलाजमा हाथ में बॉक्स लिए अंदर दाखिल हुए। इश्माइल के इशारे पर बेड पे रखी बाहर निकल गई। अभी थोड़ी देर पहले उसे आहान का मैसेज मिला था कि आज रात उन्हें किसी पार्टी में जाना है और आहान ने उसे पार्टी में पहनने के लिए इसको एक ड्रेस भिजवाया था। इश्माइल सोफे से उठती बेड पर रखे ड्रेस पर खूब देख रही थी और उस देख के उसका दिमाग घूम गया। उसने कभी साड़ी नहीं पहनी थी और ना ही उसे बांधनी आती थी। उसने मोबाइल उठाते ही आहान से बात करनी चाहिए, लेकिन ये सोचकर कि आहान ने पहली दफा उसे अपनी पसंद का ड्रेस पहनने की फरमाइश की है कि उसके इनकार से उसका दिल ना टूट जाए। आहान को काफी दिनों से सब दोस्त और खासकर तानिया उसकी शादी की खुशी में पार्टी का कह रहे थे, लेकिन वो इश्माइल के रवैये से मुसलसल इंकारी था। लेकिन आज उनकी जिद पर हार मानते उसने हामी भर ली और कुछ दिनों से उसे इश्माइल के रवैये में भी काफी बेहतरी महसूस हो रही थी। घर पहुंचते ही जैसे वो कमरे में दाखिल हुआ, सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ चुके थे। इसमें ब्लैक कलर की साड़ी में मबलूस आहान की धड़कनों में ताश पैदा कर चुकी थी। ब्लैक कलर में उसके दुधिया रंग मजीद धमक रही थे। लंबे लंबे घने बाल कमर तक बिखरे हुए थे। ड्रेसिंग टेबल के सामने रखी चेयर पर बैठे वो झुककर अपने नाजुक से पाँव को सैंडल में मुकीद करने की कोशिश करी थी, जब झुके होने की वजह से बाल बार बार फिसल कर चेहरे पर आ जाते थे। आहान ने बेखुद सा आगे बढ़ा और उसके पास पहुंचते नीचे झुककर उसके हाथ से स्टेप्स लेते उन्हें बांधने लगा। इश्माइल को उसका इस तरह अचानक देखकर जल्दी से सीधी हुई थी और अपना पाँव खींचना चाहा, लेकिन आहान ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। उसके हाथ पीछे करते ही इश्माइल फौरन वहां से उठी थी जब आहान ने खड़े होकर उसको अपने बाजू में कैद किया था। इश्माइल के गुलाबी फूले फूले गाल और शहद उगे होंठ हमेशा से आहान की कमजोरी रहे थे। उसे अपनी तरफ खींचते थे और आज तो वो मुकम्मल हथियारों से लैस थी। वो कैसे ना बहकता। आहान, हमें पार्टी में जाना है। इश्माइल को उसको मजीद बहकते देखकर लड़खड़ाते बोली। कौन सी पार्टी जाना? आहान की नजरें अब उसके सजे नरम होठों पर थी। आहान, नहीं प्लीज। इससे पहले कि वो इन पर झुकता, इश्माइल ने जल्दी से उसके होंठों पर हाथ रखकर ऐसा करने से बाज रखा था। जाना इनकी खूबसूरती को वैसे भी इस मसनूई आराइश की जरूरत नहीं। आहान उसका हाथ अपने लबों से हटाते मानी खेजी से बोला था। शुद्धतों पर बेहाल होते इश्माइल ने गिर जाने के डर से जल्द से उसके कॉलर को मुट्ठी में जकड़ा था। उसकी टांगें बुरी तरह कांप रही थी, लेकिन आहान अभी उसे आजाद करने को तैयार नहीं था। जाना, ये तो सिर्फ आगाज है। अभी से इतना घबरा रही हो। जो तुमने इतने दिन मुझे तड़पाया है, उन दिनों की बेताबियों का हिसाब भी देना है। आहान उसको मुस्कुराती नजरों से देखता ड्रेसिंग रूम की तरफ भाग गया। इश्माइल काफी नर्वस थी क्योंकि पहले भी कभी भी इस तरह की पार्टीज में शिरकत नहीं हुई थी, लेकिन आहान जिस तरह उसे डील करा था वो काफी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी। पार्टी में आहान के बिजनेस पार्टनर्स के अलावा उसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी मौजूद थे, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल थी। सब उन्होंने हाथों में हाथ लिया और उनके कपल को बेहद सराहा। आहान की बेस्ट फ्रेंड तानिया भी इश्माइल को बहुत मोहब्बत से मिली, जिस पर इश्माइल काफी हैरान हुई। आहान और मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है। मैं और वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। बज़ाहिर वो जितना प्राउडी और जिद्दी और गुस्से वाला है, अंदर से वो उससे ज्यादा कहीं प्यार करने वाला इंसान। शायद आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन आहान के साथ रहते रहते मैं उस जैसे शानदार इंसान से मोहब्बत करने को अपने आप को ना रोक पाई। लेकिन आहान का रवैया हमेशा मेरे साथ एक अच्छे दोस्त जैसा रहा। जिसे उसे मेरे जज्बात का पता चला, उसने बहुत ही नरमी और मेरी दिल अफजारी के समझाया कि वो मुझे अपनी एक दोस्त से ज्यादा कुछ अच्छा मजीद नहीं समझता। वक्ती तौर पर तो मुझे बहुत हर्ट हुई, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाल लिया क्योंकि मैं इतने अच्छे दोस्त को खोना नहीं चाहती थी, जिसने मेरे हर अच्छे और बुरे वक्त में मेरा साथ दिया।
उस दिन हॉस्पिटल में आहा ने मुझे आपके बारे में बताया था कि आज तक कभी भी किसी के जिक्र पर आहान की आंखों में वो चमक नहीं आई थी। मैं जो आपके जिक्र पर उसकी आंखों में देख कर आई थी, मैं समझ चुकी थी कि आहान के दिल में तक किसी की रसाई हो चुकी है। आहान आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। हमेशा उसकी कदर कीजिएगा, क्योंकि आप ऐसे लोग कुछ ही किस्मत वालों को मिलते हैं। और हाँ, एक आखिरी बात, उस दिन आपने मुझे आहान को जिस तरह देखा वो वैसा नहीं था जैसे आपने समझा। उस दिन इश्मल की आंखों में मौजूद नागवारी देखकर आज भी इश्मल को खुद से खिंचा खिंचा महसूस करते तानिया ने आहान के एक मुखलिस दोस्त होने का सबूत देते इश्मल को सब क्लियर किया था। तुम किस टाइम से मेरी बीवी को कौन सी पटियां पढ़ा रही हो? आहान उन दोनों के करीब आता तानिया को घूरते बोला। ज्यादा नहीं, बस तुम्हारी गुज़िश्ता 30-40 गर्लफ्रेंड्स का ही बता रही हूँ। तानिया भी उसे छेड़ते मुस्कुराते हुए बोली। इश्मल भी उसकी बात पर होली से मुस्कुराई। खुदा को मानो यार, पहले ही इतनी मुश्किल से सुलह हुई है, तुम फिर से लड़ाई करवाना चाहती हो? आहान इश्मल को मोहब्बत पाश नजरों से देखते हुए बोला। तानिया के जवाब पर आहान मुस्कुरा के रह गया। हाँ तो और क्या, पहली बार आहान अज़ामिर की कोई कमजोरी हाथ में आई है। इश्मल को वहां से सब मिलकर बहुत अच्छा लगा, और सबसे ज्यादा अच्छा आहान के ये हद से ज्यादा इज्जत और प्यार भरा केयरिंग अंदाज देखकर। बहुत अच्छा वक्त गुजरा। वो रात गहरी तक वापस लौटे थे। आहान वॉशरूम से फ्रेश होकर निकला तो इश्मल ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी ज्वेलरी उतार रही थी। आहान को अपनी तरफ बढ़ते देखकर कानों की तरफ बढ़ते इश्मल के हाथ कांपने लगे थे। उसने घबराहट महसूस करते आहान के लब होले से मुस्कुराए थे। इश्मल को बाजू से थामते आहान ने उसे अपने मुकाबिल खड़ा किया और उसके कानों को झुमकों के बोल से आजाद करते लबों से छुआ था। ईश्वर, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी रूह का हिस्सा हो। तुम्हें पहली नजर देखकर ही मैं अपना दिल हार चुका था। मैं जानता हूँ मेरी जिद और जुनून ने तुम्हें बहुत हर्ट किया, लेकिन मैंने तुम्हें अपनाने के लिए जो कदम उठाया मुझे उस पर कोई पछतावा नहीं, क्योंकि तुम्हें अपनी जिंदगी में लाने के लिए अगर इससे भी ज्यादा कोई इंतहाई कदम उठाना पड़ता तो मैं जरूर उठाता। तुमने मुझे अपने साथ बांध दिया। मैं किसी और की तरफ देखने के काबिल नहीं रहा। तुम्हारे पास होने से मुझे जो सुकून मिलता है वो जिंदगी में पहले कभी नहीं हासिल हुआ। आहान ने कंधे से उसके बाल हटाते बोला। उसके इस बेबाक अमल पर इश्मल ने जोर से आंखें मीची थी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बेहद, बेपनाह, बेशुमार, जैसे शायद मैं अल्फाज में कभी बयान ना कर पाऊँ। लेकिन आगे की जिंदगी में तुम्हें खुद ही अपने लिए मेरे जुनून देखकर तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम मेरे दिल का सुकून हो, और ये सुकून मैं अब कभी नहीं खोना चाहता। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तुम वादा करो मुझसे कभी भी जिंदगी के किसी मोड़ पर मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, और हमेशा मुझ पर भरोसा करोगी, मेरा यकीन करोगी। आहान के इतने खूबसूरत अज़हार पर इश्मल ने खुशी से नम होती आंखों से उसकी तरफ देखा था और उस सर उसके कशादा सीने पर धर दिया। आहान उसकी इस खुद सपुर्दगी के अंदाज और मोहब्बत से उसे बहाव में भरते रह गई। इश्मल आहान के हर लफ्ज पर ईमान ले आई थी। उस शख्स ने इश्मल पर अपना हक जायज रखने के बावजूद कभी भी उससे जबरदस्ती ताल्लुकात बनाने की कोशिश नहीं की, जिससे उसके नफ्स की मजबूती जाहिर होती थी। हर गुजरते लम्हे के साथ इश्मल के दिल में आहान के लिए मोहब्बत और इज्जत में इजाफा। उस रात आहान ने उसे अपनी मोहब्बत और वालहाना चाहत में इस कदर भिगोया था कि इश्मल को खुद पर फख्र होने लगा था। खुद को मुकम्मल तौर पर उसके हवाले करते इश्मल उसके सीने में चेहरा झुकाकर आंखें मीच गई थी। सुबह आंखें खोलते ही आहान ने आसूदगी से बाहों में सोई अपनी जिंदगी को देखा था। सोए होने के बावजूद भी इश्मल के चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कान थी। आहान ने मोहब्बत से उसकी पेशानी पर बूसा दिया था। हाथ आहान के लमस और पुरतपश नजरों का एहसास था जो इश्मल ने कसमखाते आंखें खोल दी थी। सुबह बखैर जिंदगी, आहान उसे मोहब्बत पाश नजरों से देखते बोला था। जब इश्मल उसकी बात का जवाब देते उसकी पुरशौक नजरों से घबराते चेहरा झुका लिया था। आहान उसकी अदा पर एक बार फिर बहकने लगा था। आहान प्लीज, इश्मल अपने चेहरे पर उसके होंठों का लमस महसूस करते हुए सुर्ख होते हुए बोली। जाना, तुम्हारे लिए अपने जज्बात पर बंद बांधना बहुत मुश्किल हो गया है। तुमने मुझ जैसे शख्स को अपने शहर में जकड़ कर बेबस कर दिया है। आहान की नजरें अशमल के एक एक नक्श को छूते उसे बहकने पर मजबूर कर रही थी। आहान ने उसकी गर्दन से बाल समेटे थे। आहान ने उसकी गर्दन से बाल समेटे थे। इश्मल अभी उसकी रात वाली शिद्दतों पर ही नासमझ भाई थी जब उसको एक बार फिर रात वाली मूड में आता देखकर जल्दी से उसके हजार से निकलते बेड से उठी थी। जब आहान उसकी पुर्ती देखकर कहका लगा के रह गया था।
میری ظالم ڈاکٹر۔ اس کی طرف دیکھتے ہی احان ہولے سے بڑبڑایا۔ ویسے ایک بہت ضروری بات اور بتانا بھول گیا۔ احان نے اس کے اتنے سنجیدہ انداز پر اشمل نے رک کر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کون سی بات؟ نظریں احان کے مسکراتے چہرے پہ تھیں۔ جانا تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ میٹھی ہو۔ احان اس کی طرف دیکھتے بے باکی سے بولا۔ جب اشمل کو اس کی بات کا مفہوم سمجھتی شرم سے لال ہوتی واش روم میں گھس چکی تھی۔ اپنے پیچھے سے اسے احان کا زوردار کہکا سنائی دیا تھا۔ بیٹا، کیا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی جو تم دونوں اتنے ناراض ہو گئے ہو؟ 2 مہینے ہو گئے ہیں میں تم لوگوں کی شکل دیکھنے کو ترستی ہوں۔ حاجہ بیگم اشمل کا ہاتھ پکڑتے بولی۔ 2 مہینے ہو گئے تھے ان لوگوں کو گاؤں سے آئے ہوئے، اور یہاں آ کر وہ آپس کے مسئلوں میں ایسے الجھے کہ دوبارہ گاؤں ہی جا نہ پائے تھے، جس کو حاجہ بیگم نے ان کی ناراضگی سمجھتے ان کو منانے شہر آ گئی تھی۔ وہ بے شک ہر معاملے میں جتنی بھی سخت خاتون تھی، لیکن احان کے معاملے میں ان کا دل عام ماؤں کی طرح موم جیسا نرم تھا۔ اس کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اس وجہ سے آج اس کا ہر جائز اور ناجائز خواہش پوری کرنے میں ہمیشہ بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اس دن احان کی آنکھوں میں اشمل کے لیے محبت کے جذبات دیکھ کر وہ اشمل کو دل سے قبول کر چکی تھی۔ ویسے بھی اشمل انہیں آج کل کی لڑکیوں کی نسبت کافی سادہ مزاج لگی تھی۔ انہیں بعد میں احساس ہو گیا تھا کہ ہینا اور حفصہ کا غصہ اشمل پر نکال کر انہوں نے ٹھیک نہیں کیا۔ نہیں آنٹی، ایسی کوئی بات نہیں، ماں سے بھلا کیسی ناراضگی؟ وہ کچھ مصروفیات ایسی ہو گئیں کہ گاؤں کا چکر نہیں لگا پائے، لیکن اب انشاءاللہ ضرور آئیں گے۔ اشمل نے ان کے محبت بھرے لہجے پر شرمندگی سے بولا، جبکہ احان خاموشی سے بیٹھا ان دونوں کی باتیں ملاحظہ کر رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر آج ہی چلو تم لوگ میرے ساتھ گاؤں۔ اشمل کی بات سنتے ہوئے حاجہ بیگم فوراً بولی۔ نہیں، آج نہیں جا سکتے، کل صبح میری بہت امپورٹنٹ ڈیلنگ ہے، پرسوں آ جائیں گے۔ احان نے سپاٹ لہجے میں انہیں جواب دیا، کیونکہ وہ حویلی کے سب لوگوں سے کچھ خفا تھا۔ عارفین کے پاس گاؤں جانے کا ارادہ تو ویسے بھی کر چکا تھا۔ تمہاری میٹنگ ہے بیٹا، لیکن اشمل تو میرے ساتھ چل سکتی ہے۔ حاجہ بیگم بھی کسی طرح احان کو آنے کے لیے راضی کرنا چاہتی تھی۔ ان کی بات پر اشمل نے احان کی طرف دیکھا، جو اس کو جانے کے حق میں نہیں تھا۔ ابھی تو ان کے درمیان سب ٹھیک ہوا تھا، اور وہ اشمل کو ایک دن کے لیے بھی اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بولو بیٹا، آؤ گی نا میرے ساتھ؟ اشمل بیچاری دونوں ماں بیٹوں کے درمیان بری طرح پھنسی ہوئی تھی، لیکن حاجرہ بیگم کے اتنے مان بھرے انداز پر اس نے اس کو انکار کرنا اچھا نہیں لگا۔ جی آنٹی، میں چلوں گی آپ کے ساتھ۔ اس کی بات سن کر حاجہ بیگم بہت خوش ہوئی تھی۔ احان انکار کرنے والا تھا جب اشمل کے اشارے پر ناراضگی بھری نظروں سے اسے دیکھتا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ احان حاجرہ آنٹی کتنی محبت سے ہمیں لینے آئی ہیں، اب اس طرح انکار اچھا تو نہیں لگتا، اور ایک دن کی تو بات ہے، تم نے بھی تو کل آ جانا ہے۔ اشمل کمرے میں داخل ہو کر احان کا خراب موڈ دیکھ کر بولی۔ تو میں نے منع کیا تمہیں جاؤ تم۔ احان سجنہ انداز میں کہتا ٹائی لگانے لگا۔ لیکن مجھے کچھ لوگ ناراض لگتے ہیں۔ اشمل اس کی ٹائی ہاتھ میں لیتے بولی۔ تمہیں کون سا پرواہ ہے لوگوں کی ناراضگی کی؟ احان کو اشمل کا یہ انداز اچھا لگ رہا تھا، اس لیے جان بوجھ کر اسے مزید تنگ کرتے بولا۔ احان لزمین، مجھے پرواہ نہیں ہوگی تو اور کسے ہوگی؟ اشمل نے ٹائی کی نوٹ لگاتے اسے گھورا تھا۔ اوکے، تو پھر مناؤ مجھے۔ اشمل کے پٹنے پر احان اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے قریب کرتے بولا تھا۔ کل مناؤں گی، ابھی جانے دیں، آنٹی میرا ویٹ کر رہی ہیں۔ اشمل اس کے تیور دیکھ کر حصار سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اشمل ہمیشہ ہی ایسے احان کی شدتوں سے حواس باختہ ہو جاتی تھی۔ جانا تم سے فری ہونے کا مکمل حق رکھتا ہوں، احان اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ویسے ایک بات مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی تمہاری۔ احان کی بات پر اپنے بال سمیٹتے اشمل نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ یہ کہ سب مجھے اتنی عزت دے کر آپ کہہ کر پکارنا، اور روم میں ایسے انداز۔ احان کی بات پر اشمل کھلکھلائی تھی۔ وہ ماما کا سختی سے آرڈر ہے کہ شوہر کو عزت دے کر آپ کہہ کر بلانا چاہیے، اسے سب کے سامنے عزت سے بلاتی ہوں، اور اکیلے میں تو پھر۔ اشمل اس کی طرف دیکھتی شرارتی انداز میں بات ادھوری چھوڑتی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ اشمل بات پوری کر کے جاؤ، ورنہ میں گاؤں جانے نہیں دوں گا تمہیں۔ اشمل کو باہر جاتا دیکھ کر احان مصنوعی دھمکی دیتا بولا تھا، لیکن وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر اشمل اس کے اپنی طرف آتا دیکھ کر روم سے باہر بھاگ گئی تھی۔ ایک بار اس دفعہ جو پلاننگ ہم نے کی ہے احان ضمیر کچھ نہیں کر سکے گا۔ ایک بار پھر مجھے بے عزت کر کے اس نے ٹھیک نہیں کیا، اور اس کی وہ بیوی بہت اچھل رہی تھی نا، اپنے شوہر کے بل بوتے پر ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یاد رکھے گی ساری دنیا۔ ملک حسیب نفرت البریز لہجے میں بولا۔ ایک نہیں دو جھٹکے لگنے والے ہیں۔ احان ضمیر کو بہت غیرت مند بنا پھرتا ہے نا، اب دیکھنا تم کیسے اس کی بہن میری بات مان کر اس کی عزت کو دو کوڑی کا کرے گی۔ بھائی جو بھی ہو جائے، اس کی بیوی ہر قیمت پر چاہیے۔ میں اس لڑکی کا غرور مٹی میں ملانا چاہتا ہوں۔ بہت دعوے سے ذکر کر رہی تھی کہ میں اپنی اس کی محبت کو اپنے بدلے کی آگ میں جلتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملک حسیب اس کا دن ہاسپٹل والے واقعے کے بعد غصے سے
कम ना हुआ था। उसका दिल चाह रहा था कि वो उन दोनों का बहुत बुरा हाल करे। ऐसा ही होगा। मलिक ज़ेशान ने अपनी प्लानिंग का सोचते शैतानियत से मुस्कुराया था। इश्माइल हाजा बेगम के साथ मगरिब के करीब हवेली पहुंची। सब बहुत ही मोहब्बत से मिले, लेकिन हिना का दिल बुझा बुझा हुआ था। इश्माइल को देख के इसकी फिक्र हुई। उस टाइम सबकी मौजूदगी में उससे बात नहीं कर पाई। भाभी, क्या भैया बहुत गुस्से में है? हफ्सा इश्माइल की तरफ देखते हुए परेशानी से बोली, क्योंकि अहान ने कॉल काटने के बाद उससे एक बार भी बात दोबारा नहीं की थी। हाँ, गुस्सा तो बहुत है अहान को, लेकिन परेशान न होना, कल आना है, मना लेना फिर। इश्माइल उसकी परेशान सूरत देखकर मुस्कुरा कर बोली, भैया को मनाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। वो किसी से इतनी जल्दी नाराज होते नहीं, लेकिन अगर हो जाएं तो फिर राजी बहुत मुश्किल से होते हैं। हफ्सा उसकी मालूमात में इजाफा करते बोली, हिना नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? इश्माइल को नाश्ते की टेबल पर हिना नजर नहीं आई। उसकी तबीयत ठीक नहीं, शायद इसलिए नमाज पढ़ के दोबारा सोगी। वैसे पहले कभी इतनी देर तक सोई नहीं। हफ्सा इश्माइल को जवाब देते कुछ सोचते बोली, चलो फिर चलकर उसके कमरे में देख लेते हैं कि तबीयत ज्यादा खराब ना हो। जब वो लोग कमरे में पहुंचे तो हिना बेड के साथ नीचे गिरी हुई थी और उसके मुंह से झाग निकल रही थी। एक सेकंड की भी देर के बगैर वो दोनों भागते हुए हिना के पास पहुंची थी और बहुत मुश्किल से उठा के बेड पर लाते इश्माइल के कहने पर हिफ्सा ने जल्दी से बाहर की तरफ बढ़ी थी। हिना के बेड पर रखी दवाइयों का बॉक्स देखकर इश्माइल समझ गई थी कि हिना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर चुकी है। गाँव के हॉस्पिटल से डॉक्टर और नर्स के साथ बाकी जरूरत मेडिकल इक्विपमेंट भी मंगवाए गए थे, क्योंकि हिना की शहर ले जाने वाली हालत नहीं थी। थोड़ी देर में हवेली में सबको पता चल गया था कि हिना ने खुदकुशी की कोशिश की है। सब लोग ही शौक में थे और इस बात पर हैरत थे कि आखिर हिना ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। हिना किसी से भी कोई बात करने की उम्मीद नहीं थी। हफ्सा और अस्मा बेगम का रो रो के बुरा हाल था। हाजा बेगम ने भी अहान को इत्तला कर दी कि आकर अपनी लाडली बहन के कारनामे दिखे। इश्माइल की बहुत कोशिश के बाद काफी देर के बाद कहीं हिना की हालत खतरे से बाहर हुई थी। हिना, तुमने ये क्या हरकत की है? तुमने एक बार भी मेरे और अम्मी के बारे में नहीं सोचा, और भैया उनको कैसा लगेगा तुम्हारी इस हरकत का? लेकिन अभी हिना खुद को किसी से भी नजर मिलाने के काबिल नहीं समझ रही थी। मलिक ज़ेशान की रोज रोज फोन कॉल से उसे ज़हनी तौर पर इतना टॉर्चर किया कि वो खुद को खत्म करने के अलावा और कोई हल उसे समझ नहीं आ रहा था। ओके, मत बताओ, अभी अहान भाई थोड़ी देर में पहुंचे हैं, वो खुद ही तुमसे पूछ लेंगे। हिफ्सा की बात पर हिना ने भीगी आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। हिफ्सा, बस करो, पहले उसकी तबीयत ठीक नहीं, तुम उसे मजीद परेशान मत करो, जाओ यहाँ से आराम करने दो। इश्माइल ने हिना की हालत देखते हिफ्सा को बाहर जाने को कहा। अहान ने जैसे ही हवेली में कदम रखा, वो बगैर किसी से सलाम दुआ किए सीधा हिना के कमरे की तरफ बढ़ा। इसको इतने गुस्से में जाते देख के हाजा बेगम और बाकी सब उसकी तरफ आए थे। इश्माइल जो हिना को दवाई देकर हटी थी, जोर से दरवाजा खुलने की आवाज पर उधर मतवज्जो हुई। हिना भी अहान को अंदर आता देखकर फौरन अपनी जगह से उठी, लेकिन अहान ने इसको कोई बात पूछे बगैर एक जोरदार थप्पड़ उसकी कॉल पे रसीद किया था। हिना औंधे मुंह बेड पे जागी थी। अहान, ये अब क्या कर रही हैं? उसकी तबीयत ठीक नहीं। सब अच्छे से वाकिफ थे कि अहान के गुस्से से, इसलिए खामोशी से अपनी जगह खड़े थे, लेकिन हिना की हालत के मद्देनजर रखकर इश्माइल खामोश न रह पाई। इश्माइल, तुम नहीं जानती ये खबर सुन के मेरी क्या हालत हुई। अगर इस बेवकूफ लड़की को कुछ हो जाता फिर मुझे सारी जिंदगी अफसोस रहता। मुझे खुद पर अफसोस है कि मेरी लाडली बहन ने अपनी परेशानी मुझसे डिस्कस करना गवारा नहीं की। अहान गुस्से और परेशानी और दुख के मिले जज्बे इस्बात के साथ बोला, भैया प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया, लेकिन मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। आप नहीं जानते मेरी जिंदगी में आपका क्या मकाम है। मैं किसी सूरत आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। हिना बेड पर सर झुकाकर बैठे रोते हुए बोली। जब अहान समेत बाकी सब भी उसकी बात पर चौंके। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? अहान कड़े तेवरों से उसे घूरते हुए बोला। हिना, एक सेकंड के अंदर बोलो तुम्हारी इस हरकत की असल वजह क्या है, और अगर मजीद कोई झूठ बोलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अहान की सख्त आवाज पर हिना ने कांपते हाथों से माथे पर आया पसीना साफ किया और एक नजर कमरे पर मौजूद तमाम लोगों पर डाली। मलिक ज़ेशान मुझे कुछ टाइम से फोन करके धमकियां दे रहा है। वो कहते हैं कि मैं किसी को बताए बगैर हवेली से फरार होकर उसके पास चली जाऊं। अगर मैंने आपको ये या किसी और को बताया तो वो आपको जान से मार देगा। इसलिए मुझे कड़े तेवरों से उसे घूरते हुए बोला। जब हिना अपने ही अल्फाज के अल्फाज पर गड़बड़ाई थी, उसकी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। हिना, एक सेकंड के अंदर बोलो तुम्हारी इस हरकत की असल वजह क्या है। मलिक ज़ेशान मुझे काफी टाइम से फोन करके धमकियां दे रहा है। अगर मैंने आपको या किसी और को ये बात बताई तो वो आपको जान से मार देगा। इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं वो आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इसलिए मैंने खुद ही खत्म करना चाहा। हिना की बात सुनकर हान के अलावा वहां मौजूद तमाम अफराद को जैसे सांप सूख गया हो। उस बगैर शख्स की इतनी हिम्मत कि मेरी बहन को टॉर्चर करे। पिछली बार बच गया, लेकिन इस बार जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अहान का दिल चाहा कि उन दोनों भाइयों के टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल दे। अहान रुको, इस तरह करने से नुकसान के अलावा कुछ
کچھ ہاتھ نہیں آنے والا۔ سب سے پہلے حاجہ بیگم ہوش میں آئی تھی اور احان کے پیچھے بھاگی تھی۔ احان رک جاؤ، حسنین ضمیر کے سامنے آتے بولے۔ بابا آپ اس کی صلح صفائی والے طریقوں پہ آپ نے اس کو سر پہ چڑھا دی ہے کہ اب وہ اس حد تک پہنچ چکا ہے۔ احان ان کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں احان، مجھے اس معاملے میں لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے تھی، لیکن اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ ان کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے، لیکن اب جو تم کرنے جا رہے ہو وہ غلط ہے۔ وہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہم جذبات میں آ کر کوئی ایسا قدم اٹھائیں۔ حسین صاحب اس کو ملکوں کے ڈیرے پر نہیں جانے دینا چاہتے تھے۔ حاجہ بیگم بھی پاس کھڑی مسلسل روئی جا رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو کھونے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ فرقان صاحب نے بھی آگے بڑھتے اس کے غصے کو کم کرنا چاہا۔ باقی سب پریشانی کے عالم میں خاموش کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ یہ سب خاموشی سے دیکھتی اشمل کو لگا تھا کہ بڑے اسے روک لیں گے، لیکن احان اس وقت ایک زخمی شیر سے کم نہیں تھا۔ احان کے خطے کی طرف بڑھتے قدم دیکھ کر اشمل کو خود نہ روک پائی تھی اور بھاگتے قدموں سے احان کے پیچھے گئی تھی۔ احان رک جائیں پلیز، آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ آرام سے بیٹھ کے مسئلے کا کوئی اور حل بھی نکالا جا سکتا ہے۔ احان ہال کے دروازے سے باہر قدم رکھنے والا تھا جب اشمل نے اس کے پاس پہنچتے اسے بازو سے تھاما تھا۔ احان بنا اشمل کی طرف دیکھے اس کے بازو کو ہاتھ سے پیچھے جھٹکا دیا، جس پر جان بوجھ کر احان کو روکنے کے لیے اشمل پاس پڑی ٹیبل پر جا گری اور اس کا ماتھا ٹیبل کے کونے سے ٹکراتے بری طرح زخمی ہوا تھا۔ اشمل کی چیخ پر احان فوراً پلٹا تھا اور اشمل کے سر سے نکلتے خون کو دیکھ کر بے تابی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ سب سمجھ چکے تھے کہ اشمل نے احان کو روکنے کے لیے جان بوجھ کر ٹیبل سے سر ٹکرایا ہے۔ احان کو پلٹتا دیکھ کر خوش ہونے کے ساتھ اشمل کا اتنا خون بہتا دیکھ کر سب فکر مند بھی تھے۔ جو احان کو اپنے قریب آتا دیکھ کر اشمل پرسکون انداز میں مسکرائی تھی۔ احان اپنے آپ کو اشمل کی حالت کا ذمہ دار سمجھتا، خود کو لعنت ملامت کرتا، اسے باہوں میں اٹھائے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ احان تم پرامس کرو اس طرح غصے میں وہاں نہیں جاؤ گے۔ اشمل ہوش میں آتے اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر اس کو بولی۔ تم سب پاگل ہو گئے ہو یا مجھے کوئی کمزور سا ڈرپوک انسان سمجھ رکھا ہے جو میری خاطر خود کو اس طرح کی تکلیف دے رہی ہو؟ تم نے صرف مجھے روکنے کے لیے خود کو جان بوجھ کر زخمی کیا۔ احان جانتا تھا کہ اس نے اشمل کو اتنی زور سے جھٹکا نہیں دیا وہ اس طرح گر جائے۔ ہاں تو اور کیا کرتی ہے احان ضمیر، تم جس طرح جا رہے تھے آرام سے دیکھتی رہتی۔ تمہیں اپنی زندگی کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن ہمیں ہے۔ غصے میں تم اتنے پاگل ہو جاتے ہو کہ کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ تم اکیلے بھی جا کر ان دونوں کو ختم کر دیتے، لیکن اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتی۔ اشمل آنسو کے درمیان اس کی طرف دیکھتے غصے سے چلائی۔ جب اتنی سیریس سچویشن پہ بھی اشمل کا اتنا خوبصورت اظہار سن کر ایک دلکش مسکراہٹ احان کے لبوں پر کھل گئی تھی۔ اوکے جانا، وعدہ کرتا ہوں کہ تم سے آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ اب پلیز تم رو نہیں اور تھوڑی دیر آرام کرو، میں ذرا ایک بہت ضروری کام کر کے آتا ہوں۔ ماں میں کسی قسم کی بحث میں نہیں پڑنا چاہتا، آپ صرف مجھے اتنا بتائیں کہ آپ دونوں میرے ساتھ صفیہ پھپھو کے گھر آ رہے ہیں یا نہیں؟ احان ان کی طرف دیکھتے دو ٹوک انداز میں بولا۔ حسنین ضمیر تو ویسے ہی بہت شرمندہ تھے کہ آج تک اپنی بیٹیوں سے خود کو غافل رکھا، جس کا نتیجہ آج دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہینا کو کچھ ہو جاتا تو وہ کبھی خود کو معاف نہ کر پاتے۔ احان کی بات سر حسبات میں ہلاتے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ حاجہ بیگم کے دل میں آج پہلی بار ہینا کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی، جس نے احان پر کوئی آنچ آنے کے ڈر سے اپنے آپ کو ختم کرنا چاہا تھا، اور یہ بات سوچ کر ہی وہ کانپ اٹھتی تھی کہ اگر باقی احان چلا جاتا تو کتنی بڑی انہونی ہو سکتی تھی۔ اگر آپ دونوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں چلوں گی آپ لوگوں کے ساتھ۔ ان کی بات پر احان کے ساتھ آنے کا کہتا باہر کی طرف ہٹ گیا تھا۔ احان ان دونوں کو ساتھ لے کر آسمہ بیگم کو بھی صفیہ کے گھر کے پہنچا تھا۔ صفیہ بیگم حاجہ بیگم کے منہ سے ہینا اور عافیہ کے رشتے کے بات سن کر حیران رہ گئی۔ حویلی میں جو کچھ ہوا ان کی خبر مل چکی تھی، لیکن حاجہ بیگم کی ایسی کایا پلٹ پر انہیں یقین نہیں تھا۔ جو سب سے زیادہ اس رشتے کے خلاف تھیں آج وہ خود ہی اس کو جوڑنے کی بات کر رہی تھی۔ صفیہ بیگم کے ہسبینڈ تو ویسے بھی کو اعتراض نہیں تھا اور عارفین کی مرضی جان کر وہ اس رشتے سے خوش تھے۔ سب کو راضی دیکھ کر صفیہ بیگم کے پاس نکاح کی کوئی وجہ نہیں بچی تھی۔ وہ حاجہ بیگم کی باتوں میں آ کر ان سے برا سلوک کرتی آئی تھیں اور آج وہی اس بات کے حق میں تھی۔ عارفین سب کی اتنی جلدی مان جانے پر بے حد انتہا خوش تھا۔ احان جلدی سے اس طرف سے ملکوں سے نبٹنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے کل ہی نکاح رکھنے کا فیصلہ کیا اور 1 ہفتے بعد شادی کی ڈیٹ فائنل کی گئی۔ سب کو اتنی جلدی پر بہت اعتراض ہوا تھا، لیکن احان نے بہت مشکلوں سے سب کی رضامندی حاصل کر لی تھی۔ ہینا کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک اس نکاح کی لیے رضامندی نہیں دے گی جب تک آپ اس کی حرکت پر اسے معاف نہیں کر دیتے۔ حفصہ کی بات سنتے احان نے طویل سانس ہوا میں خارج کیا تھا۔
अहान आप प्लीज माफ कर दें, बेचारी को रो रो के हलकान हो रही है वो, और मुझे पूरा यकीन है कि जब तक आप उससे बात नहीं करेंगे वो निकाह के लिए हाँ नहीं करेगी, क्योंकि आपकी बहन माशाल्लाह से आज जिद पर आप ही पर गई है। इश्माइल अहान की तरफ देखते आखिरी बार शरारती अंदाज में बोली, जिस पर अहान ने उसे भरपूर गोली से नवाजा था। हिफ्जा ने भी अफजल की इस बात पर मुस्कुराहट छुपाई थी। हिना क्या मसला है, लगता है एक थप्पड़ खा के तुम्हारा दिमाग जगह पर नहीं आया जो इस तरह से लगा कर बैठी हो। अहान हिना के रूम में दाखिल होता हुआ बोला। भैया प्लीज जितने चाहे थप्पड़ मार लें, डांट लें, लेकिन यूं नाराज ना हो। हिना आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली। अहान से हिना की ये आदत नहीं देखेगी, वो तो हमेशा अपनी बहनों को खुश देखना चाहता था, उनकी खातिर किसी से भी लड़ जड़ने के लिए तैयार रहता था, पर अब ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था। हिना मेरी गुड़िया, कल तुम्हारी हरकत के बारे में सुनकर जिस तरह मैं यहाँ पहुंचा हूँ तुम्हें बता भी नहीं सकता। अगर कोई अनहोनी हो जाती तो क्या तुम्हें मुझ पर इतना ट्रस्ट नहीं कि एक बार मुझे बताने के बजाय ये हराम फेल करना ज्यादा मुनासिब लगा तुम्हें। और आरफीन वाली बात सबको मालूम थी, सिर्फ मुझे ही नहीं मालूम था। तुम जानती हो मैं उन मर्दों में नहीं जो खुद तो अपनी पसंद को अहमियत दे लेकिन बहन बेटियों से ये हक छीन ले और इन बातों को अना का मसला बनाए। अगर एक भाभी मेरे सामने इस बात का जिक्र कर देती तो कभी इतनी तकलीफ बर्दाश्त न करनी पड़ती। अहान की बात सुनकर हिना के गिल्ट में मजीद इजाफा हुआ था। वाकई वो ठीक ही तो कह रहा था, उसने हमेशा हर बात में उनकी खुशी को तरजीह दी थी। हाजा बेगम की मुखालफत के बावजूद भी वो उन्हें अजीज रखता था। आई एम सॉरी भाई, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। हिना आंसुओं के दरमियान शर्मिंदगी से कहती अहान के सीने से आ लगी थी। अहान ने उसके सर पर हाथ रखकर मोहब्बत से बोला। जब उसकी आखिरी बात पर आंसू साफ करती हिना मुस्कुराती थी। आरफीन बहुत अच्छा इंसान है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अब मुझे तुम सिर्फ हंसती मुस्कुराती नजर आओ, उस जंगली बिल्ली हफ्सा की तरह। भाभी कुछ लोगों की तो आज मुस्कुराहट छुपाई नहीं छुप रही। हफ्सा ने इश्माइल की तरफ देखकर हिना को छेड़ा था। ऐसी कोई बात नहीं है बदतमीज। हुना ने उसके बाजू पर चुटकी काटी थी, जिसने कब से उसकी नाक में दम कर रखा था। दोपहर के वक्त हिना और आफरीन का निकाह हो चुका था। जो बात उन दोनों को नामुमकिन लग रही थी, अहान की वजह से इतनी आसानी से हो गई थी। सभी बहुत खुश थे। सफिया बेगम और हाजा बेगम ने जिंदगी में पहली बार हिना से मोहब्बत से बात की थी, जिस पर वो काफी शौक में थी। इश्माइल और हफ्सा तो निकाह के बाद उन दोनों की मुलाकात करवाने के मूड में थी, जिसके लिए हिना किसी सूरत तैयार नहीं थी। बहुत मुश्किल से उनकी मिन्नत समझानत करके इस अमल से उसे बाज रखा था। वो शर्माते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि दोनों उसे छीनने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। वैसे एक बात समझ नहीं आ रही, ये मोहब्बत हुई कब और कैसे, क्योंकि आरफीन साहब तो हमारी हिना से भी ज्यादा शर्मीले हैं। इश्माइल का लहजा भी काफी शरारती था। भाभी आप भी इसके साथ शामिल हो गई हैं, हिना मुंह बनाते बोली। मैं बताती हूँ आपको भाभी, इनकी मोहब्बत की कहानी काफी कॉम्प्लेक्स है। आज तक कभी ढंग से बात नहीं की, बस नजरों ही नजरों में मोहब्बत हुई, वहीं से इजहार हुआ और फिर जालिम समाज के डर से वहीं से इनकार भी हो गया। हफ्सा ने कहकर लगाते कहा, जिसमें इश्माइल ने भी उसका भरपूर साथ दिया। मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए आप लोगों से, हिना ने नाराजगी से कहते चेहरा दूसरी तरफ मोड़ा। हिफ्सा बस अब बिल्कुल तंग नहीं करना हिना को, कुछ आरफीन भाई के लिए भी बचा के रखो यार। अपने साथ देने पर हिना मुस्कुराई, लेकिन इश्माइल की अगली बात पर खफगी से फिर से चेहरा मुड़ गई। अभी वो लोग उसे मजीद तंग करते कि मुलाजमा घबराई हुई अंदर दाखिल हुई। मुलाजमा के बाद उनके होश उड़ने के लिए काफी थी जब इश्माइल के पीछे जल्दी से वो दोनों भाई की जानिब बढ़ी थी। अहान की गाड़ी पर कातलाना हमला हुआ था, जिसके पीछे मलिक हसीब का हाथ था। हिना के निकाह का सुनकर मलिक ज़िशान पागल हो रहा था। आज तक कभी उसका शिकार उससे ना बच पाया। उसे लगा था कि हिना भी बाकी लड़कियों की तरह उसके हाथ ब्लैकमेल हो जाएगी, क्योंकि हवेली तक पहुंचकर हिना को उठाना नामुमकिन था। यही एक तरीका था उसे ब्लैकमेल करके हवेली से भागने पर मजबूर कर दें और अहान रजामीर की गरूर मिट्टी में मिला दें। अहान को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है, आप लोग परेशान मत हो। ड्राइवर और एक गार्ड जख्मी है, जिन्हें शहर पहुंचा दिया गया है। हुसैन साहब ने उन सबको तसल्ली देते बोला। अहान अगर ठीक है तो वो हवेली क्यों नहीं। हाजा बेगम को जब से पता चला उनके आंसू रुक ही नहीं लेते और बाकी सबका भी यही हाल था। मैंने उसे बहुत कहा है, लेकिन उसका कहना है कि जब तक इन लोगों को अंजाम तक नहीं पहुंचाऊंगा हवेली में कदम नहीं रखूंगा। फरकान साहब की बात सुनते इसमें का दिल जोर से धड़का। वो अहान का जलाली रूप देख चुकी थी, जिसमें उस दिन हसीब को सामने देखकर वो आया था। उसे डर था कि कहीं अहान के जज्बातीपन से उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। इश्माइल कितनी बार उसका फोन ट्राई कर चुकी थी, लेकिन उस तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। इश्माइल को परेशानी के साथ अहान पर गुस्सा भी आ रहा था। इश्माइल के साथ हिना और हफ्सा भी उनकी खिदमत में लगी हुई थी। हाजा बेगम ने रो रो कर अपनी तबीयत भी खराब कर ली थी। हाजा बेगम न जाने कितनी बार आसमा बेगम, हिना और हफ्सा से अपने गुनाहों की माफी मांग चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि उनके गुनाहों की सजा उनके बेटे को मिले। इश्माइल इन सबको एक होता देखकर बहुत खुश हुई थी। अब अहान भी तो यही चाहता था।
कौन हो तुम लोग, क्यों लाए हो मुझे यहाँ पर? मलिक ज़ीशान बंधे हुए हाथों के साथ चला रहा था। उसे एक छोटे से तारीक कमरे में रखा गया था। पास खड़े दो हट्टे कट्टे आदमी बिल्कुल खामोश थे, जिसे उन्हें कुछ बोलने की जरूरत न हो, इजाजत न दी गई हो। मलिक ज़ीशान को बिल्कुल समझ नहीं आया था कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। वो अपने डेरे पे सो रहा था। कौन था ऐसा माइक हलाल जिसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं थी? जब अचानक उसके दिमाग में आहान ज़मीर का ख्याल आया था। अभी वो मजीद कुछ सोचता जब दरवाजे के खुलने की आवाज आई। उसकी नजरें अंदर वारिद होने वाले शख्स पर थीं, लेकिन जैसे ही सामने वाला चेहरा वाज़ेह हुआ, मलिक ज़ीशान की रंग मुतगय्यर हुई थी। आहान के करीब आते देखकर उसे अपनी मौत भी करीब नजर आई थी। क्या हुआ और ये क्या देख रहा हूँ मैं? मलिक ज़ीशान डर रहा है, लेकिन जहां तक मैंने सुना है मलिक ज़ीशान तो किसी से नहीं डरता। आहान उसकी हवाइयां उड़ते चेहरे की तरफ अस्ताई अंदाज में था। तुम ये लोग ठीक नहीं कर रहे, मेरा भाई तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को नहीं छोड़ेगा, मलिक ज़ीशान ने उसे धमकाना चाहा। जब आहान का एक जोरदार थप्पड़ उसके 14 तबक रोशन कर गया था। अपनी गंदी जुबान से मेरे घर वालों का नाम भी मत लेना, और तुम्हारी उस बेगैरते भाई को भी देख लूंगा। आहान गुस्से से दहाड़ा। उसके इशारे पर पास खड़े आदमियों ने हाथ में पकड़ी लोहे की राड उसके बाजू पर दे मारी थी, जिसे बर्दाश्त न करते मलिक ज़ीशान दर्द से बुलबुला उठा था। उस दिन अपनी दोनों टांगों से हाथ धोकर मुझे लगा था कि तुम्हें कुछ अकल आ गई होगी, लेकिन नहीं। तुम जैसे बेज़मीर लोग दूसरों पर जुल्म करके इतने आदी हो गए कि खुद को फिरौन समझ बैठते हैं, और ये भूल जाते हैं कि बुराई का अंजाम हमेशा अबरनाक होता है। छोड़ दो मुझे, आइंदा कभी तुम्हारी घावों की तरफ नजर नहीं करूंगा, माफ कर दो मुझे। वो आहान के आगे गड़गड़ाया। उसकी आंखों के सामने उन तमाम लोगों के चेहरे घूम रहे थे जिस पर उसने जुल्म के पहाड़ ढाए थे। मैं तुम्हें इस काबिल छोड़ूंगा तब तुम कुछ कर पाओगे ना। आहा ने हाथ में पकड़ी गरम सलाख से उसके दाईं बाजू पर जरब लगाई। पूरा कमरा मलिक ज़ीशान की चीखों से गूंज उठा। रहम करो मुझ पर, आइंदा कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। आहान को अपने दूसरे बाजू की तरफ बढ़ते देखते वो रुक के चलाया था। आहान के अगले वार से उसका दूसरा बाजू भी नकारा हो चुका था। अभी वो इस डर से न संभला था कि दूसरे आदमी को तेज धार आला लिए अपनी तरफ बढ़ते देखा था। तुम्हें इतनी आसान मौत देकर मैं उन मजलूमों के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता जिन पर ना जाने तुमने कितने जुल्म ढाए हैं, बल्कि तुम हमेशा के लिए जिंदा लाश बना के रख लूंगा, ताकि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी तुम्हारे अंजाम से सबक सीखें। और हाँ, आहान जाते पलटा था। इस जबान से टॉर्चर किया था ना तुमने मेरी बहन को, ना जाने और कितनी बहन बेटियों को किया होगा। कितने मजे की बात है अगर इसे ही खत्म कर दिया जाए। आहान नफरत भरी नजरों से उसकी तरफ देखता अपने आदमी को इशारा करता वहां से निकल गया था। आहान के आदमी ने उसकी जबान काट दी थी। आहान ने उसे जान से नहीं मारा था, बल्कि हाथ और जुबान से मजबूर करके अपने आदमी को उसे दोबारा वहीं छोड़कर आने का हुक्म दिया था जहां उसे लाया गया था। इश्माइल कल से आहान को कॉल करके हलकान हो चुकी थी, लेकिन उसका फोन मुसलसल बन जा रहा था। इंतहा का खड़ूस शख्स है, ये इतना भी ख्याल नहीं आया कि घर सब कितने परेशान होंगे। इश्माइल में रूम में चक्कर काटते फिक्रमंदी से सोचा, खुदा न खास्ता मलिक हसीब के उस हमले में आहान को कोई नुकसान न पहुंचा हो जो घर नहीं आया, ना ही फोन उठा रहे। या अल्लाह जी प्लीज आहान को कुछ ना हो। वो अपनी सोचों में न जाने कब तक उलझती मोबाइल की आवाज पर जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी थी। स्क्रीन पर चमकाता नंबर अनजान था। जी फरमाएं, कौन बात कर रही हैं? किसी औरत की आवाज सुनते इश्माइल ने पूछा। डॉक्टर इश्माइल, मैं नर्स बतूल बात कर रही हूँ और आपकी मदद की जरूरत है। अभी अभी हॉस्पिटल में एक जख्मी बच्चे को लाया गया है, उसकी हालत बहुत खराब है। डॉक्टर जेबा भी गाँव में नहीं है, आप जल्दी से आ जाएं, अगर जरा सी भी देर हो जाएगी तो ये बच्चा बच जाएगा। बतूल की घबराई आवाज सुनकर इश्माइल उसी वक्त हॉस्पिटल की ओर उठी, लेकिन फिर आहान की हवेली से ना निकलने वाली हदायत पर उसके कदम ढीले पड़े थे। बतूल, लेकिन मैं डॉक्टर साहिबा प्लीज इनकार मत कीजिएगा। इश्माइल की बात पूरी होने से पहले ही बतूल ने उसकी बात काटते फौरन बोला, जैसे उससे यकीन हो कि इश्माइल इनकार करने वाली है। ओके, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी पहुंचती हूँ। इश्माइल ने कॉल काटते एक बार फिर आहान का नंबर डायल किया, लेकिन उसका नंबर बदस्तूर बंद था। उसकी समझ में ना आया कि वो क्या करे। बच्चे की जान वाकई खतरे में हो सकती है, और ना ही उसका पेशे उसे बददयानती करा सकता था। एक फैसला करते वो बाहर की तरफ बढ़ी। सब लोग शायद ऊपर हाजा बेगम के कमरे में मौजूद थे, इसलिए नीचे हॉल खाली था। इश्माइल पास से गुजरती मुलाजमा को हाजा बेगम को इन्फॉर्म करने का कहकर ड्राइवर गाड़ी को निकालने का हुक्म दे चुकी थी। इससे पहले कि घर वालों को उसके जाने की इत्तला मिलती या कोई नीचे आकर उसे रोकता, वो गाड़ी में बैठ के वहां से निकल चुकी थी। आहान जानता था कि घर में सब परेशान होंगे, इसलिए मलिक हसीब का काम तमाम करने से पहले घर जाने का इरादा करते ड्राइवर को गाड़ी हवेली की तरफ मोड़ने का हुक्म दिया था। वो जानता था उस पर हमले का सुनकर सब बहुत फिक्रमंद होंगे। कल भी मलिक ज़ीशान वाले मामले की वजह से वो घर में नहीं जा पाया था।
आहान ने जैसे ही हवेली में कदम रखा, आने वाली खबर से उसके पैरों तले जमीन खींच लिया था। इश्मल महफूज नहीं थी। आप सब लोग घर में मौजूद थे, किसी ने भी उसे रोका नहीं। आहान गुस्से से सबकी तरफ दिखता दहाड़ा था और किसी की कोई भी सफाई सुने बगैर उल्टे पांव हवेली से वापस भागा था। घर वालों में से किसी का भी बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं था, खासकर इश्मल का। आहान का दिल अनजाने खौफ से धड़क रहा था। हाजा बेगम और बाकी सब मुलाजमों की इत्तला पर जैसे ही नीचे आई, इश्मल वहां से निकल चुकी थी। उन्होंने उसी वक्त हसनैन और फरकान अजामीर को फोन करके डेरे से बुलवाया था। गार्ड से इश्मल के साथ जाने वाले ड्राइवर का नंबर इसे कॉल की गई थी, लेकिन उसका नंबर बंद देखकर मजीद परेशानी हुई थी। उनके आने के बाद कुछ देर बाद आहान भी वहां पहुंचा। आहान समझ चुका था कि मलिक हसीब पागलों की तरह अपने भाई को ढूंढता फिर रहा है। इश्मल को इस तरह ट्रैप करके बुलाना और जरूर उसकी कोई चाल होगी। एक इसकी नजर लगी, मेरे घर को एक मुसीबत खत्म नहीं होती दूसरी आ जाती है। या अल्लाह मेरे बेटे और बहू को अपनी हिफाजत में रखना, उन्हें दुश्मनों की शर से महफूज रखना। हाजा बेगम ने रोते हुए सोफे पे गिर गई थी। इश्मल हवेली से निकल आई तो लेकिन इसका दिल बहुत घबरा रहा था। आहान से बात ना हो पाई थी और न ही घर वालों से किसी को बता कर आई थी। ड्राइवर गाड़ी अभी हॉस्पिटल से कुछ फासले पे थी जब इश्मल ने उसको कहा कि ड्राइवर 1 मिनट गाड़ी यहीं रोक दो। इश्मल की बात सुनते ड्राइवर ने फौरन गाड़ी रोकी। उनमें से एक गाड़ी पर नजर पड़ते इश्मल को याद आया कि उस दिन मलिक हसीब जब हॉस्पिटल में उससे मिलने आया तो यही गाड़ी उसके पास थी। ये तो मलिक हसीब की गाड़ी है। इश्मल की बात ड्राइवर पर उसने गौर से देखा। कहीं मुझे ये किसी साजिश के तहत तो नहीं बुलाया गया, लेकिन बतूल ऐसा क्यों करेगी? इश्मल ने जल्दी से अपने पर्स में हाथ डालकर मोबाइल ढूंढना चाहा। ओह शिट, मोबाइल तो लगता है मेरे रूम में ही रह गया है। इश्मल की परेशानी में मजीद इजाफा हुआ। भाई आपके पास मोबाइल है? इश्मल ने एक उम्मीद के तहत पूछा, लेकिन ड्राइवर का जवाब सुनकर वो भी जाती रहेगी, जिसके मुताबिक कल ही उसका मोबाइल गिर के टूट गया था। बीबी जी अब क्या करना है? मेरे ख्याल में वापस चलना चाहिए। अगर ये गाड़ियां वाकई मलिक हसीब की हैं तो आगे जाना खतरे से खाली नहीं, हमें पूरा यकीन भी तो नहीं कि ये गाड़ी मलिक हसीब की है। अगर बतूल की बात सच है और उसके बच्चे की जान को खतरे में हुई तो? ड्राइवर की बात के जवाब में इश्मल ने फिक्रमंदी से बोला, आप एक काम करें, हॉस्पिटल के मेन गेट के बजाय गाड़ी पीछे रिहायशी क्वार्टर की तरफ मोड़ दें। इश्मल ने कुछ सोचते हुए ड्राइवर को हदायत दी, जिस पर अमल करते उसने गाड़ी को रिवर्स करके दाईं तरफ मोड़ दिया। इश्मल कुछ दिन यहाँ रही थी, इसलिए इसे पिछले रास्ते से अच्छी तरह वाकिफ थी। आहान ने हालात को देखते हुए सब गाड़ियों में इमरजेंसी सूरत हाल के लिए एक एक पिस्तौल रखवाया था। इश्मल को गाड़ी से निकलता देखकर ड्राइवर सीट के नीचे से पिस्तौल निकालता उसके पीछे बढ़ा था। हसनैन अज़मीर सख्त मिजाज होने के बावजूद अपने मुलाजमों का हमेशा ख्याल रखते थे। यही वजह थी कि उनके मुलाजिम उनके बहुत वफादार और अपनी जान परवाह किए बगैर वो इश्मल के साथ जाना मुनासिब समझा था। इश्मल पीछे गेट के अंदर दाखिल और एहतियात से अंदर की तरफ बढ़ी। जब उसकी नजर क्वार्टर के सामने बने छोटे से सेहन में पड़ी, वही कूटी हुई लाल मिर्चों पर पड़ी। न जाने किस बात के ज़ेर असर इश्मल ने आगे बढ़ के उन्हें काफी मिकदार में अपने दुपट्टे में भर लिया। दबे पांव हॉस्पिटल के कॉरिडोर से गुजरते ड्राइवर के साथ आगे बढ़ी। जब फ्रंट वाले कमरे से उन्हें रोने की आवाज सुनाई दी, किसी गड़बड़ को महसूस करते इश्मल ने झुककर आगे होती खिड़की से अंदर की तरफ झांका। मलिक हसीब अपने आदमियों के साथ अंदर मौजूद था, जिन्होंने बतूल और उसके दोनों बच्चों पर गन तान रखी थी। बतूल उसके सामने हाथ जोड़े रहम की भीख मांग रही थी। कहाँ है तुम्हारी वो डॉक्टर? अभी तक नहीं पहुंची। कहीं तुमने होशियारी तो नहीं की? रहम करें मलिक साहब, मैंने उन्हें आपके सामने फोन किया है, कोई होशियारी नहीं की। छोड़ दें मेरे बच्चों को, खुदा का वास्ता, हम आपको बेकसूर हैं। बतौर से सकते हुए बोली, अब तुम्हें कमीन मुझसे ऐसी जबान चलाओगे? बहुत फर्क निकला है तुम्हारे अपने उन हवेली वालों की वजह से। अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। मलिक हसीब बतूल को दीवार की तरफ जोर से धक्का दिया और उसकी 14 साल बेटी की तरफ बढ़ा था। काफी खूबसूरत है तुम्हारी बेटी। डरी सहमी बच्चे के गाल पर हाथ फेरते हुए बतूल की तरफ देखते मकरू हंसी हंसा था। नहीं, मेरी बेटी को कुछ मत करना, उस मासूम का क्या कसूर है? नहीं, छोड़ दो उसे। उसकी गलीज नजरें अपनी बच्ची पर पड़ते देख के वो तड़प उठी। जब मलिक हसीब के आदमियों ने उसे वहीं दबोच लिया, इससे पहले कि वो बच्ची के साथ कोई नाजेबा हरकत करता, ये सब देखते खुद पर कंट्रोल खोते इश्मल ने आगे बढ़ना चाहा, लेकिन अचानक चलने वाली गोली उसके कदम वहीं थम गए थे। गोली सीधी मलिक हसीब के बाजू में जा लगी थी। इश्मल ने चेहरा मुड़कर अपने साथ खड़े ड्राइवर की तरफ देखा था, जो मलिक हसीब पर पिस्तौल ताने खड़ा था। वो अपने गांव की बच्ची के साथ आंखों के सामने इतना बड़ा जुल्म होते नहीं देख सकता था। मलिक हसीब समेत उसके आदमी भी इस अचानक वाली अफताब पर संभलते बाहर की तरफ बढ़े थे और अगले 5 मिनट में वो दोनों इन लोगों के कब्जे में आ चुके थे। तो आखिर आ गई तुम। कहाँ है तुम्हारा वो शोहर जिसके नाम पर उस दिन बहुत उछल रही थी? मलिक हसीब इश्मल की तरफ हवस भरी इंतकामी निगाहों से देखता आगे बढ़ा। इससे पहले कि आहान उसके आदमी यहाँ पहुंचते, मलिक हसीब का इरादा वहां से निकलने का था। इश्मल को अपने कब्जे में देखकर वो गोली का दर्द भी भूल चुका था, क्योंकि अपने तसव्वुर में वो कुछ और ही सोच रहा था। मैं आज तुम्हारे सामने
मैं आज तुम्हारे सामने बिना डरे खड़ी हूँ क्योंकि तुम जैसे बुज़दिल इंसान के लिए अहान अज़ामीर की बीवी ही काफी है। मलिक हसीब इश्मल को पकड़ने उसकी तरफ बढ़ा ही था जब इश्मल ने दुपट्टे में लिपटी सुर्ख मिर्चों से मुट्ठी भर के मलिक हसीब के मुंह पर उछाली। इससे पहले कि उसके आदमी हरकत में आते इश्मल ने उन पर भी मिर्चों से हमला किया। वो सब चेहरे पर हाथ रख के कहरा रहे थे। मिर्चें इतनी जहरीली थी कि इश्मल को भी उनकी जलन महसूस हुई थी। क्या हुआ, मेरा हशर बिगाड़ने वाले थे, अब तो अपनी शक्ल देखने के काबिल नहीं रहे। ईश्वर उनको हकारत भरी नजरों से देखती बतूल को बाहर निकलने का इशारा करते आगे बढ़ी। मलिक हसीब इतनी जल्दी से उन्हें अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहता था। पीछा करो उन सबका, और अगर वो निकल गई तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मलिक हसीब के कपड़ों से आंखें पूछता आदमियों पर चलाता बाहर की तरफ बढ़ा था। आहा ने हवेली से निकलते ही गांव से बाहर जाने वाले तीनों रस्तों पर अपने आदमियों को फैला दिया था। मलिक हसीब को वो किसी सूरत बख्शने के मूड में नहीं था, लेकिन उसे इश्मल की भी बहुत फिक्र थी। हसनैन अज़ामीर के इत्तला पर पुलिस वहां पहुंचने ही वाली थी। आहा जल्द अज जल्द वहां पहुंच जाना चाहता था क्योंकि अभी भी उसे अपने एक आदमी से हॉस्पिटल में गोली चलने की खबर मिली थी, जिस बात पर उसकी बेचैनी में मजीद इजाफा हो गया था। हवा के दोष पर गाड़ी चलाता वहां पहुंचा। अभी वो हॉस्पिटल से कुछ फासले पे था जब उसे हॉस्पिटल के गेट से नर्स और ड्राइवर के साथ इश्मल बाहर निकलते दिखाई दी। इश्मल को सही सलामत देखकर आहान के बेकरार दिल को जैसे करार सा आ गया। आहान फौरन गाड़ी से बाहर निकला, लेकिन तभी उसकी नजर गेट के पास खड़े मलिक हसीब पर पड़ी, जिसने एक हाथ आंखों पर रखा और दूसरे हाथ से लड़खड़ाते अंदाज में इश्मल पर पिस्तौल ताना हुआ था। आहान ने एक सेकंड भी जाया किए बगैर उसके बाजू पर गोली चलाई। पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। आहान मलिक हसीब की तरफ भागते हुए उस पर झपटा था। गोली की आवाज पर इश्मल और बाकी सब खौफ से रुक गए थे, लेकिन मलिक हसीब को आहान के रहमो करम पर देखकर उनके चेहरों को कुछ सुकून सा शामिल हो गया था। आहान बुरी तरह मलिक हसीब को पीट रहा था, जिसकी वजह से वो पूरा लहूलुहान हो चुका था। इस बार भी इश्मल ने आहान को रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ी, बल्कि मलिक हसीब की ऐसी दुर्गत देखते हुए इत्मीनान से अपनी जगह खड़ी रही। सबके लिए उसका अंजाम दिली सुकून का बाइस था। आहान के तशद्दुद से वो मरने के करीब था जब पुलिस वहां से पहुंचकर बहुत मुश्किल से उसे आहान से आजाद करके ले गई थी। हसीब की हालत देखने की काबिल थी। जो धमकी वो थोड़ी देर पहले इश्मल को दे रहा था वो इस पर उलट हो चुकी थी। मलिक हसीब को पुलिस के हवाले करना आहान इश्मल की तरफ बढ़ा था। इश्मल, तुम ठीक हो? उस पर बेहद गुस्से के बावजूद इश्मल को बाजू से थामते फिक्रमंदी से बोला, तुम जानती हो तुम्हारी ये बेवकूफी तुम्हारे लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकती थी। अगर मैं अभी टाइम पर ना पहुंचता तो ये बात दिमाग में आते ही मेरा दिल चाह रहा है पता नहीं क्या करूं। अगर तुम्हें जरा सी भी खराश आ जाती थी तो मैं सारी दुनिया को आग लगा देता। लेकिन इश्मल, तुमने खुद को नुकसान में डालकर गलती की है, उसके लिए मैं तुम्हें कभी बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। इश्मल के बिल्कुल ठीक होने की तसल्ली करते अपने गुस्से पर काबू ना पाते आहान उस पर चलाया था। अगर उसे एक मिनट की भी देर हो जाती तो इश्मल की जान भी जा सकती थी। ये बात उसे इतना पागल करी थी कि इर्द-गिर्द का ध्यान दिए बगैर वो अपना जख्म खोता पहली बार इश्मल पर चलाया था। इश्मल जानती थी कि आहान उसकी वजह से फिक्रमंद है, लेकिन आहान का सबके सामने उस तरह चलाना उसको अच्छा नहीं लगा था। उसकी किसी बात का जवाब दिए बगैर इश्मल ने नाराजगी भरी नजरों से उसकी तरफ देखा था, जिनको नजरअंदाज करते आहान उसका हाथ पकड़ते गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। मुझे माफ कर दें बीबी जी, अपनी खुदगर्जी में मैंने आपकी जान खतरे में डाल दी, लेकिन आप बहुत बड़ी और नेक दिल की मालिक हैं। आप आराम से वहां निकल सकती थी, लेकिन आपने मेरी मदद की बीबी जी। मैं बहुत आपकी शुक्रिया गुजार हूँ और आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। नहीं, जो तुमने गलत नहीं किया। तुम्हारी जगह वहां जो भी होता यही करता। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। नरमी से उसे कहते इश्मल ने आहान के साथ गाड़ी की तरफ भड़ गई थी। आहान का इरादा पहले तो बतूल को मजा चखाने का था, लेकिन उसकी डरी हुई हालत देखकर वो खामोश हो गया। उसकी बात सुनकर इश्मल पर गुस्से में मजीद इजाफा हो चुका था, जिसने जानबूझकर खुद को खतरे में डाला था। हाँ, अलबत्ता इश्मल पर गुस्से का इजाफा उसका मजीद हो चुका था। सारे रास्ते उन दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। आहान अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा और इश्मल ने इतने गुस्से में देखकर उसे छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। घर में सब उन दोनों की खैर खैरियत पर वापस आ जाने से बहुत खुश थे। हसनैन अज़ामीर इतनी मुसीबत टल जाने की वजह से सदका खैरात किया था। बहुत सारे बकरे ज़िबा करके गरीबों में तकसीम किए गए थे। हवेली में हिना और आफरीन की शादी की तैयारियां अरूज पे थीं। आहान उसे छोड़ने के बाद घर वापस नहीं आया था, बल्कि वहीं से शहर के लिए निकल गया था। उसकी वापसी मेहंदी वाले दिन सुबह हुई। इश्मल का आहान पर अब पारा कुछ ज्यादा ही पड़ चुका था, जिसने एक बार भी उसे फोन करके जहमत नहीं की थी, इसलिए आहान के आने का सुनकर वो एक बार भी उसके सामने नहीं गई थी। आहान उसे कितनी बार बुलवा चुका था, लेकिन इश्मल अभी मुकम्मल तौर पर उसे इग्नोर करते अपने काम में मसरूफ थी। घर में सब दोनों की नाराजगी नोट कर चुके थे, लेकिन आहान के मामले में कोई भी बोलकर अपना बैंड नहीं बजवाना चाहता था। भाभी, आपने तैयार नहीं होना, जल्दी करें ना। हफ्सा कमरे में दाखिल होते इश्मल को अपने ऐसे ही बैठकर देखकर उजलत में बोली थी।
ہوتی ہوں تیار، ابھی تو بہت ٹائم ہے، اشمل نے بے دلی سے جواب دیا۔ وہ آہان کے ہوتے ہوئے کمرے میں بالکل نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے اس کو تیار ہو کر نکلنے کا ویٹ کری تھی۔ ایک ملازمہ کو اس نے اس کام پر لگا رکھا تھا۔ بھابی، اتنے دنوں سے ایک بات آپ سے کرنی تھی، سمجھ نہیں آ رہا کیسے کروں، لیکن آج آہان بھائی جب آئے تو میں نے کہا کہ مجھے لگا کہ آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے۔ حفصہ حد درجہ سنجیدہ انداز میں کہتی اشمل کے پاس صوفے پر آ بیٹھی۔ اشمل کے ساتھ ہنا بھی چونک کر اس کی طرف اتنا سنجیدہ ذات کی طرف دیکھا تھا۔ کیا بات ہے حفصہ، سب ٹھیک ہے؟ ایسا کیا کہا آہان نے؟ اشمل نے کبھی اسے اتنا سنجیدہ نہیں دیکھا تھا، اور آہان کی کیا ایسی بات تھی؟ وہ اس دن میں نے حاجہ امی کو بابا سے آہان بھائی کی دوسری شادی کروانے کے بارے میں بات کرتے سنا۔ آپ کو شاید علم نہیں اس بات کا، لیکن جیسے ہر خاندان کی اپنی روایات ہوتی ہیں، ویسے ہی ہمارے خاندان کی روایت ہے کہ مرد کو ہر حال میں 2 شادیاں کرنی ہوتی ہیں۔ دادا جان نے بھی 2 شادیاں کی، بابا اور فرقان چچا کی مثال تو آپ کے سامنے ہے، ویسے ہی آہان بھائی کو بھی دوسری شادی کرنی ہوگی۔ حفصہ نے ایک پل ٹھہرا کر اشمل کا دھواں ہوتا چہرہ دیکھا۔ ہنا کو آنکھوں ہی آنکھوں میں چپ رہنے کی دھمکی دیتے حفصہ ہمت کر کے پھر بولی، پہلے تو بھیا اس بات کے حق میں نہیں تھے، لیکن آج صبح ہی ان کی حویلی واپس آنے کے بعد انہوں نے حاجہ امی سے بات کرتے سنا، جس میں وہ بسمہ سے دوسری شادی پر رضامندی دے رہے تھے۔ حفصہ کی بات ختم ہوتے ہی مشکل سے خود پر کنٹرول کھاتے اشمل غصے سے اپنی جگہ سے اٹھی، اور یہ بات سن کر اسے جیسے آگ لگی تھی۔ آہان ضمیر میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اشمل بنا حفصہ کے ایکسپریشن پر غور کیے جلدی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جب اندر آتی ملازمہ نے اسے آہان کے بلانے کا بتایا تھا، جس کا کوئی جواب دیے بغیر اشمل اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ بدتمیز حفصہ، یہ کیا بکواس کی تم نے؟ بھابی سے کب ایسے کسی کوئی روایت ہے ہمارے خاندان میں، اور آہان بھائی بھابی سے کتنا پیار کرتے ہیں، تو انہوں نے میں نہیں مانتی اس بات کو۔ ہنا حفصہ کی کلاس لیتے بولی، کیونکہ اشمل جتنے غصے میں گئی تھی اسے ڈر ہی لگ رہا تھا کہ کچھ اور ہی نہ ہو جائے۔ بھیا بیچارے صبح سے بھابی کو کتنی بار بلا چکے ہیں، لیکن بھابی ان کے ہاتھ نہیں لگ رہی۔ میں تو بس اپنے بھیا کی مدد کی کوشش کی ہے، حفصہ نے ہنستے ہوئے بولا، اور اگر جو اس بات سے صلح ہونے کے بجائے بات اور بگڑ گئی، دونوں ہی بہت غصے والے ہیں۔ مجھے تو بہت ٹینشن ہو رہی ہے، تم اتنی بڑی بات بھابی کو نہیں کہنا چاہیے تھی۔ ہنا کو ان دونوں کی فکر مند ہوئی۔ نہیں تو تمہیں تو بس ٹینشن لینے کا بہانہ چاہیے، یقین رکھو مجھ پر کچھ نہیں ہوگا۔ حفصہ کی بات پر ہنا اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ اشمل جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے آہان ضمیر پر نظریں پڑی تھیں۔ بلیک کرتا شلوار اس کی مردانہ وجاہت مزید نمایاں ہو رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر آہان نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ آہان ضمیر، کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ جب دل چاہے گا کرو گے، کسی کے جذبات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اشمل آہان کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کو گربان سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے چلائی تھی۔ غصہ مجھے تم پہ کرنا چاہیے، اور اتنی بڑی غلطی ماننے کے بجائے الٹا تم مجھ پر غصہ کر رہی ہو۔ اتنے دنوں بعد اشمل کو سامنے دیکھ کر آہان کا مزاج کافی خوشگوار ہو چکا تھا، لیکن اشمل کے اس انداز پر حیرت سے اسے دیکھا تھا، جو اس کے بہت قریب کھڑے اس کے کالر کو اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچے اسے گھور رہی تھی۔ آہان ناراضگی کے باوجود اس کی حرکت پر ہولے سے مسکرایا تھا، کیونکہ اگر اشمل کی جگہ کوئی اور یہ حرکت کرتا تو اب تک اس کا انجام بہت برا ہوتا۔ تو اور کیا، تمہاری دوسری شادی کا سن کر تمہیں پھولوں کے ہار پہناؤں؟ اشمل کی بات پر آہان نے چنبے سے اس کی طرف دیکھا۔ کس نے کہی یہ بات؟ آہان نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر قریب کرتے پوچھا۔ جب اشمل کی پوری بات سن کر حفصہ کی شاعت پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ بات تو سچ ہے، میں کیا کروں، خاندان کی روایت ہے، انکار تو نہیں کر سکتا۔ آہان سنجیدہ انداز میں اس کی طرف دیکھتا دنیا کا جیسے سب سے بے بس انسان معلوم ہو رہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ساتھ اس چڑیل کا بھی قتل کر دوں گی، اگر تم نے کبھی کچھ ایسا سوچا بھی۔ اشمل اور اس کی آنکھوں میں ناشتی شرارت پر غور کرتے بغیر چلائی تھی۔ تم صرف میرے ہو، تم پر صرف میرا حق ہے، خبردار جو کسی کو بھی میرا حق دینے کے بارے میں سوچا۔ آہان ضمیر، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بات کرتے اشمل کی آنکھوں سے کہ آنسو بہہ نکل چکے تھے۔ میں مذاق کر رہا ہوں، ایسا کچھ نہیں، اور حفصہ نے بھی صرف تمہارے پاس بھیجنے کے لیے ایسا کہا ہوگا۔ میں ایسا کرنے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا۔ تمہارے علاوہ میری زندگی میں کسی کی کوئی گنجائش نہیں۔ میری جان، میری محبت کو بس اتنا ہی سمجھتی ہو کیا؟ آہان اسے اپنے سینے میں پہنچتا بھرپور جذبات کے ساتھ بولا۔ جب اس کی بات سنتے اشمل کے اندر کا سکون آ گیا تھا۔ میں نے اس دن تمہیں بہت کالز کی، لیکن تم نے کبھی بھی میری ایک کال بھی نہ اٹھائی۔ میں اتنی پریشان تھی کہ سب کے سامنے مجھ پر غصہ بھی کیا، اور پھر اتنے دن دور رہے، ایک بار بھی بات نہیں کی۔ اشمل نے اس کے سینے پر سر رکھے سارے قصور گنوائے۔ تمہاری حویلی سے باہر ہونے کا سن کر میرا خود سے کنٹرول ختم ہو گیا۔ وہ گھٹیا شخص تمہیں نقصان پہنچا سکتا تھا، اس لیے اس وقت سب کے سامنے تمہیں ڈانٹ دیا، جس پر میں بہت شرمندہ ہوں۔ اور جہاں تک اتنے دور رہنے کی بات ہے، تو میں جلد سے جلد اپنا تمام اہم کام نپٹا کر آیا ہوں، تاکہ ہنا اور عارفین کی شادی کے بعد ہم آرام سے اپنے ہنی مون پر جا سکیں۔ آہان کی بات سنتے اس کی آخری بات پر
شرم ہوتی اشمل اس کے سینے سے سر ہٹایا تھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، ابھی تیار بھی ہونا ہے۔ اشمل دوبارہ اپنی کلائی آہان کے قبضے میں دیکھ کر دھیرے سے بولی۔ جانا، اپنی شادی پر تمہیں مہندی اور بارات کی دلہن کے روپ میں محسوس نہیں کر پایا، لیکن اپنا حق تمہیں کسی صورت نہیں چھوڑتا، اس لیے آج اور کل میرا حق سود سمیت دینے کے لیے تیار رہنا۔ الماری چیک کر لو، تمہارے لیے کچھ موجود ہے وہاں۔ اس کی گال پر اپنے جذبات کی شدت بخشتے وہ کمرے سے نکل گیا، لیکن اس کی بات پر اشمل کے دل میں ہلچل سی مچ چکی تھی۔ واہ بھابھی کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اشمل کو ہینا کے روم میں داخل ہوتے دیکھ کر حفصہ چہکتے ہوئے بولی۔ واؤ کی کچھ لگتی شرم نہیں آتی؟ اشمل کے کھونے پر حفصہ ڈھیٹ بن کے مسکرائی۔ آپ کے چہرے کی شادابی سے لگ رہا ہے کہ صلح ہو چکی ہے۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ محبت سے اشمل کے جگمگاتے روپ کی طرف دیکھا۔ نہیں بھئی، آج تو سب سے زیادہ ہماری ہینا غضب ڈھا رہی ہے۔ اشمل پیار سے ہینا کے سجرے سوے شرمیلے روپ کی طرف دیکھتے بولی، جو بلو اور گرین شرارے میں مبلوس بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں اشمل اور ہینا اسے تھام کر نیچے لے آئیں۔ ہینا کو اس طرح سب کے نگاہوں کا مرکز بنتے بہت کنفیوز کر رہی تھی۔ جب اشمل نے اس کا ہاتھ تھام کر حوصلہ دیتے ہوئے اسے اسٹیج پر بیٹھے عارفین کے ساتھ بٹھایا۔ آج تو عارفین کی چپ بھی بڑی نرالی تھی۔ آہان کی نظریں تو اشمل کے حسین روپ میں اٹک کے رہ گئی تھیں، جو اسے سب کے سامنے بہکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ہینا کو تسلی دیتے اشمل اب خود آہان کی بولتی نظروں سے کنفیوز ہو چکی۔ حاجہ بیگم کسی کام سے ملازمہ کو ہدایت دیتے اندر کی طرف بڑھی تھی۔ ابھی وہ راہداری سے گزری تھی جب کسی نے اسے بازو پکڑ کے کھینچا تھا۔ اس سے پہلے کہ اشمل چیخ مارتی، آہان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آہان کے ایسا کرنے سے اشمل ایک دم گھبرائی تھی۔ کیا ہوا؟ آہان نے حیرت سے اس کے ہونٹوں کو چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ آہان، یہ کیا طریقہ ہے؟ میری لپسٹک خراب ہو جائے گی۔ اشمل کے منہ بوسونے پر آہان نے مسکرایا۔ وہ تو میں ویسے بھی خراب کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آہان نے معنی خیز کسی سے کہتے ہوئے اس پر جھکا تھا۔ نہیں آہان پلیز۔ اشمل نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ آہان نے جھک کر اس سے اٹھتی مہندی اور موتی کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں لیا تھا۔ آہان، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ملازم سب اندر ہی ہیں، کوئی بھی اس وقت اس طرف آ سکتا ہے۔ اشمل ہمیشہ کی طرح اس کے جذبات کی شدت سے گھبرائی ہوئی تھی۔ تو چلو پھر بیڈ روم چلتے ہیں، آہان نے شرارتی انداز میں کہا۔ جب اشمل نے دھیرے سے چلائی تھی، کیونکہ آہان سے کوئی بعید نہیں تھی، وہ واقعی اسے سب کے سامنے اٹھا کر بیڈ روم میں لے جاتا۔ جانا ابھی کے لیے چھوڑا ہوں، لیکن کل رات کسی قسم کی کوئی مہلت نہیں دینے والا۔ اشمل کے ہونٹوں کو ہلکا سا چھیڑتے ہوئے وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ اشمل دل پر ہاتھ رکھ کر خود کو نارمل کرتی پیاری سی مسکان سجائے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بہت خوش تھی اور دل سے اپنے رب کا شکر گزار کری تھی جس نے اتنی محبت اور عزت کرنے والے شوہر سے اس کو نوازا تھا۔ آہان عزامیر کے بغیر اب وہ جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بارات کا فنکشن بھی خیر و عافیت سے انجام پایا۔ ہینا دلہن بن کے بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن عارفین بھی کچھ کم نہیں لگ رہا تھا۔ ہینا کو تھوڑی دیر پہلے حفصہ اور اشمل باقی کزن کے ساتھ عارفین کے روم میں بٹھا کر واپس آ گئے تھے۔ اسے بھی انتظار کرنا تھا۔ تھوڑا سا ٹائم گزرا تھا جب دروازہ کھولا کر عارفین داخل ہوا تھا۔ عارفین بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ عارفین کو قریب دیکھ کر ہینا کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہوا۔ ہینا ریڈ کلر کے لہنگے میں بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ اس کے شرماتے گھبراتے انداز نے اس کے حسن میں اضافہ کر دیا تھا۔ اس لڑکی کو اس نے بچپن سے خواہش کی تھی۔ اپنی ماں کا برتاؤ دیکھ کے تو اسے اپنی یہ خواہش پوری ہوتی ممکن نہ تھی، لیکن جب جذبے حد سچے ہوں تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ عارفین نے ہاتھ بڑھا کر ہینا کا کانپتا ہاتھ تھاما تھا۔ ہینا، میں جانتا ہوں کہ تم اپنی زندگی میں بہت دکھ اور محرومیاں دیکھی ہیں، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والی زندگی میں ان سب چیزوں کو تمہارے قریب بھی نہیں آنے دوں گا۔ میں تمہاری زندگی کے ہر قدم پہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ عارفین کے دل میں اپنا مقام دیکھ کر ہینا کے دل میں اس کے رشتے کے حوالے سے موجود خدشات جاتے رہے تھے۔ ہینا نے نگاہیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کی جذباتی لٹاتی آنکھوں میں دیکھنا اس کے لیے بے بس تھا۔ تم میرے لیے اولین چاہت ہو، یہ دل ہمیشہ تمہارے لیے دھڑکا ہے اور جب تک سانسیں ہیں یہ تمہارے لیے دھڑکتی رہیں گی۔ عارفین ہینا کو قریب کرتے محبت سے بولا تھا۔ اس کے عمل پر ہینا کی دھڑکنے کی سپیڈ پکڑ چکی تھی۔ یار میں کہیں کب سے بولی جا رہا ہوں، تم بھی کچھ بولو، میرے کان تمہارے اظہار کے منتظر ہیں۔ عارفین کی محبت بری سرگوشی پر ہینا نے شرماتے ہوئے اس کے سینے پر سر چھپا لیا تھا۔ اس کی معصوم سی حرکت پر عارفین دل سے مسکرایا تھا۔ عارفین اس کے گرد حصار کھینچتے اسے اپنی محبت کی حسین وادی میں لے جا چکا تھا۔ آہان ڈرائنگ روم میں بیٹھا حسین عزامیر اور باقی سب کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا جب اس کی نظر
ड्राइंग रूम से बाहर गुजरती इश्मल पर पड़ी। बारात में अपने होश रुबा हुस्न के साथ उसने आहान को अच्छा खासा घायल किया था। अब तो इसको इश्मल को ठीक से देखने का मौका भी नहीं मिला था, लेकिन इस वक्त इसको चेंज करके बिल्कुल सा हुलिया में देखकर आहान को बहुत बुरा फील हुआ था। दिल ही दिल में इश्मल से उसकी गुस्ताखी का बदला लेने का सोचते आहान मुस्कुराकर वापस सबके साथ बैठ गया था। काफी देर बाद सबके उठने के साथ वो भी अपने कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन खाली कमरा देख के आहान की कशादा पेशानी पर सिलवटें नुमाया हुई थी। कल रात इश्मल के रात को उसने उसे हिना के रूम में सोने की परमिशन दी थी, लेकिन लगता था कि उसकी बीवी कुछ ज्यादा ही फ्री हो गई थी। आहान भी इश्मल को बुलाने के लिए पलटा ही था जब उसकी नजरें टेरेस से आती रोशनी में पड़ी। जैसे ही उसने टेरेस पे कदम सामने रखा तो उसकी नजरें मबहूत हो गईं। रेड और व्हाइट गुलाब से बहुत खूबसूरत डेकोरेशन की गई थी। पूरे टेरेस पर छोटे छोटे बहुत सारे खूबसूरत दिए रोशन किए गए थे जो अंधेरे में बहुत दिलकश मंजर पेश कर रहे थे। उन सब पर से होते आहान की नजरें एक मंजर पर जम चुकी थी, जहाँ टेरेस के बिल्कुल सेंटर में फूलों से सजे तख्त पर इश्मल उसके लाल लाए हुए रेड लहंगे में संजी संवरी बैठी हुई थी। आहान इतने खूबसूरत सरप्राइज पर दिल से मुस्कुराया था। पिछले दिनों से उसे अंदाजा हो चुका था कि इश्मल उससे वैसी ही मोहब्बत करने लगी है जैसे उसने ख्वाहिश की थी, लेकिन आज उसके दिल करीब अज़ाब पर आहान का दिल खुशी से झूम उठा था। वो मधुर सी चाल चलते आगे बढ़ा। इश्मल के बेहद करीब बैठते आहान ने उसका घूंघट उलट दिया था, लेकिन इश्मल के बेपनाह हुस्न पर नजर पड़ते ही वो खुद को बहकने से रोक ना पाए। सोलो संघार किए वो धड़कते दिल के साथ उसके सामने थी। आहान की नजर उसके नाक में पहनी नाजुक सी नथ में अटक के रह गई थी। उसने हाथ बढ़ाकर मोहब्बत से उसकी नथ को छुआ था। इश्मल ने उसके लम्स पर कुसमा के रह गई थी। मेरी जिंदगी में आने और इसे रौनक बख्शने का बहुत शुक्रिया मेरी जान। आज जो सरप्राइज तुमने दिया है इसका मैं लफ्जों से शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। तुमने मेरे जज्बात को मोहब्बत को मजीद भड़काया है। अब मेरी शिद्दतें बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार हो जाओ। आहान कहती ही उसने इश्मल के चेहरे पर प्यार से बूसा दिया था उसे अपनी बाहों में नरमी से लिया था। आज हवेली का हर शख्स अपनी जगह खुशी और मुतमईन था, क्योंकि दुख और मुसीबतों के बादल छट चुके थे और उन्हें खुशहाल और खुशकरम जिंदगी की नवीद मिल चुकी थी। दी एंड।